अ गुड मैनेजर अंडरस्टैंड्स कि उसने अपने जूनियर्स को किस तरह मैनेज करना है और फिर उसने अपने बॉस को कैसे मैनेज करना है. व्हेन यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अ सर्टेन वे ना, तो you attract that energy as well. Definitely. You attract those people as well. Definitely. Luck plays a part, but then you have to be ready कि जब आपको luckily कोई opportunity मिले, तो you have that mindset and you have those things that you can explain that vision. When you're dealing with these internal clients, ठीक है, तो yes, उनके mind में कुछ चीज़ें होती हैं और कुछ ऐसी restrictions भी होती हैं जिसकी वजह से वो हो सकता है आपकी कई चीज़ों को ना उस तरह से देख रहे हो. हम जिसको AI कह रहे हैं ये असल में AI है नहीं. ChatGPT is not really AI. Assalamu alaikum everyone. I am Wasif Hussain. I am your host for this podcast called Tangent, and we've been trying to understand design कि वो किस तरीके से पाकिस्तान में implement हो रहा है. And today we have another guest from marketing. I learned a lot from him because he's one of my previous colleagues. We had amazing time. But उनकी प्रैक्टिस के बारे में मैं of course खुद नहीं बताऊंगा, वो अपने बारे में बताएंगे. Assalamu alaikum Ziad. Walaikum assalam Wasif. Thanks for having me here. No, man, thank you so much for coming in on a Sunday. No problem, man. No, Sunday's good. Sunday's good. Ziad, थोड़ा सा अपने अभी जो आप कर रहे हैं, tell us about yourself and then where you've been coming from, थोड़ी सी audience के लिए. Absolutely. So right now I'm the general manager at a group of companies. ठीक है, the major one being Chapter 43, which is a marketing agency with a very big post-production operation. ठीक है, so और उसके अलावा company called Kyaltha जो कि एक BPO है. ठीक है, सो BPO के अंदर बेसिकली बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्सिंग कई कंपनीज कर लेती हैं. ठीक है, वो अपने सेल्स एजेंट्स आउटसोर्स कर देते हैं, चैट सपोर्ट वालों को आउटसोर्स कर देते हैं. कई कंपनीज अपना पेरोल आउटसोर्स कर देती हैं पूरा, राइट, के बजाय अपने वो पेरोल का सिस्टम बनाए, वो कहते हैं अच्छा यार हमारा पेरोल फलानी कंपनी संभाले, हमारे एम्प्लॉइज़ की पेमेंट्स व्हाट नॉट. तो वो एक है. एंड देन वी हैव वेरी स्मॉल वेब डेवलपमेंट कंपनी जो कि लास्ट ईयर हमने स्टार्ट की है. ठीक है, सो इट्स अ वेब डेवलपमेंट कंपनी दैट वी आर होपिंग विल ग्रो इनटू अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी. ठीक है, सो या बेबी स्टेप्स. These are the three main operations. इसके अलावा there's a hard right, you can say, that we launched a cafe अब से 2 महीने पहले. Yes. So जहाँ बाकी सारी जो है IT enabled services है और वेस्टर्न ऑडियंस को हम लोग कैटर कर रहे हैं, वेस्टर्न क्लाइंट्स को. तो यहाँ पे एक सडनली हम लोगों ने एक जो है लाहौर के अंदर एक अपना कैफ़े लॉन्च किया बिकॉज we wanted good food, I guess. So that has been going for the last 2 months. ठीक है, by the name of Purple Jane, Defense Phase 6 में है. सही है, ठीक है. So उधर भी like a completely different kind of experience. तो वो भी manage कर रहा हूँ साथ, and learning a lot from that. And yes, there are a few things in the pipeline, but वो whenever they launch the Inshallah, उसको भी डिस्कस करेंगे. Definitely, and I saw the pictures. The interior looked amazing, and the ambience as well. I'm due a visit. I will definitely come. Yeah, absolutely. Taste the food as well. Yeah. ठीक हो गया. Ziad, tell us about how did you end up in this domain, or where you're sitting right now? वो initially beginning क्या थी? So we were in business school. ठीक है, और business school में I guess everyone जो है everyone kind of wants to be a businessman, wants to be an entrepreneur. ठीक है, लेकिन I was lucky कि मैंने कॉलेज में ही एक चीज़ सीख ली थी कि entrepreneur होने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपने अपना ही कारोबार करना है. ठीक है, so you can be an entrepreneur while you are working a job. Because let's be honest, ठीक है, हर बंदा ज़्यादातर लोग जो हैं वो नौकरी करते हैं. ठीक है, एवरीबडी वांट्स टू डू अ बिजनेस, लेकिन हमें सक्सेस स्टोरी सही नज़र आती हैं. ज़्यादातर तो आपके बिजनेसेस वो नहीं चलते, कहीं चल जाते हैं, स्केल नहीं हो पाते, व्हाट नॉट. सो मेजॉरिटी हैव टू एंड अप गोइंग फॉर अ जॉब. एंड कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली जिन्होंने कभी जिंदगी में मेरे पुश्तों ने जो है बिजनेस नहीं किया, नौकरी का ही पता है. ठीक है, सो DNA के अंदर नौकरी ही है. सो कहीं ना कहीं अंदाज़ा था कि हे मैं अपनी चीज़ ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन I will probably have to the numbers say कि probably कहीं ना कहीं जाके नौकरी करनी है. लेकिन वो जो एक आप कह लें कि एक कीड़ा था कि यार कुछ बनाना है, कुछ को एंटरप्रेन्योर बनना है. तो थैंक गॉड के कॉलेज में ही सही लोग मिल गए गाइड करने वाले, जिन्होंने ये बताया कि यार यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर व्हेरेवर यू गो, प्रोवाइडेड यू फाइंड द राइट एम्प्लॉयर, राइट. सो वही चीज़ माइंड में रखते हुए जब मुझे कॉलेज में अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया, ठीक है, कुछ साल वो चला, ठीक है,
अप्स एंड डाउन्स आते हैं. ग्रेजुएट हुए, सडनली इट्स लाइक ओके यार अब नाउ थिंग्स गेट सीरियस. अब मैं ऐसा नहीं हो सकता कि एक और 4 साल दे दूं अपने बिजनेस को सेटअप करने की, बिकॉज अगेन मिडिल क्लास फैमिली. तो the first job I went to, I was like, okay, you guys need to understand that I can do more than just, you know, the basic sales executive का काम या marketing executive का काम. ठीक है. तो और I was lucky कि within a month the management they noticed me और उनको वही हो गया कि they were like, okay, no, you can do more. तो चलो हमारे साथ जो है आओ. So the first company I joined एक software house था, 25 लोग थे उसमें. ठीक है. मैंने ज्वाइन किया था एज मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव. सही. और 1 महीने बाद मैंने उनसे कहा कि भाई मैं तो फिर एग्जीक्यूटिव MBA करने जा रहा हूँ, क्योंकि आई फील लाइक कि ये तो जैसे, क्योंकि मैं अपनी कंपनी चला के आया हुआ था. लाइक आई हैड सोल्ड माई मैगजीन्स इन 5 डिफरेंट कंट्रीज, राइट. तो आई वाज लाइक कि आई फील लाइक कि यू नॉट, तो अगर डिग्री एक मसला है तो मैं डिग्री लेके आ जाता हूँ. तो द CEO एक्चुअली सैट मी डाउन. पहले उसने मुझे CV खोल के मुझे कन्विंस किया कि MBA ना करो, because he was like, you already have the experience for it, so you don't need to do it. Okay. So then I was like, अच्छा, if that is the case, then don't you think I can do more here? And I think I was very lucky कि उस वक्त जो है that was the point where I kind of got pushed into a leadership role. Okay. ठीक है. एंड तब से ही मुझे जो है वो मिल गया कि ठीक है, आई बिकेम देयर प्रोजेक्ट मैनेजर. ठीक है. अपने सीनियर्स को मैनेज कर रहा था. शुरू में काफ़ी रेजिस्टेंस आई, बट महीने 2 महीने के अंदर उनकी रिस्पेक्ट अर्न की, बिकॉज दे रियलाइज्ड कि ओके दिस किड नोज समथिंग, राइट. सही. वहाँ से करते करते साल बाद अभी साल का एक्सपीरियंस था मार्केट में, बट नेक्स्ट पेज जो पाकिस्तान की आई थिंक 3rd लार्जेस्ट IT एक्सपोर्टर है, व्हाट नॉट. So they were advertising a role for associate marketing manager. और वो 5 years experience मांग रहे थे. I had 1 year experience and then 4 year experience of my own company, right, जो कॉलेज में चलाई हुई थी. So वो सारा इकट्ठा किया. I applied, गया हूँ, बैठ गया हूँ, लाइक 24 साल की उम्र में. जो सारे बाकी सारे रहते थे they were all 30+, but I got picked, despite that. और मैं जब वहाँ पे गया, आई रिमेंबर सबको बड़ा शौक लगता था कि जो मेरे साथ के जो मेरे पीयर्स थे मैनेजमेंट में, वो सारे मुझसे 8-8 साल बड़े थे और बीच में एक 24-25 साल का एक लड़का बैठा होता था. ठीक है. लेकिन द CEO काइंड ऑफ टुक अ लाइकिंग टू मी एंड ही वाज लाइक यार दिस इज द गाय. 2-3 साल वहाँ से मैंने बहुत सीखा. देन आई टुक अ ब्रेक. आई वाज लाइक ओके, मुझे लग रहा था कि व्हेन आई स्टॉप्ड बीइंग एन एंटरप्रेन्योर देयर, कि मुझे लग रहा था कि नहीं यार, अब ये लाइक इन दिस जॉब मैं नहीं ग्रो कर सकता, मुझे कुछ नया नहीं भरा, बल्कि थोड़ा सा रिवर्स गियर भी लग गया कि वो जो होता है कि यार ये फ्रीलांसिंग वेबसाइट से प्रोजेक्ट उठाओ एंड व्हाट नॉट. आई वाज लाइक नो, लाइक दिस इज यू गाइस हैव 500 एम्प्लॉइज, यू कांट डू दैट नाउ. ठीक है. तो और मुझे भी था कि यार एक तरफ लाइक $6 million, $8 million का रेवेन्यू मैं लेके आ रहा हूँ, और अब मैं लाइक ओडेस्क तब होता था, ठीक है, उसको फिर तो वाज लाइक नहीं, अब नाउ इट्स प्रोबेबली रन इट्स कोर्स. तो आई लेफ्ट दैट जॉब. तकरीबन 1 साल मैंने एक्सपेरिमेंट्स ही किए डिफरेंट चीज़ों के अंदर. और आई डोंट शाई अवे फ्रॉम दैट. मुझे पता है कि अच्छा मेरी एक फील्ड है, लेकिन बिकॉज वी हैव अ विलेज बैकग्राउंड, तो जो फार्मिंग के रूट्स हैं हमारे बड़े स्ट्रॉन्ग हैं. तो एकदम बीच में एक आया कि यार लेट्स गो इनटू कैटल फार्मिंग. अब फॉर मी मेरा दिमाग फ़ौरन चला कि ओके, आई हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट टेक, आई नो कि मैं कैसे इंटीग्रेट कर सकता हूँ, क्या कुछ कर सकता हूँ. सो आई वाज लाइक लेट्स डू इट. ठीक है. वो भी थोड़ा बहुत किया, थोड़ा बहुत उसकी फंड रेजिंग वगैरह के अंदर भी मैंने जो है ना काम करा. तो वो था हमारा अपना, तो एक लर्निंग एक्सपीरियंस तो वो भी था. बट देन फाइनली मैंने कंपनी को ज्वाइन किया. इनिशियली सॉर्ट ऑफ लाइक अ कंसल्टेंट, कि ओके था कि चलो 2-3 महीने. इट वाज अ स्किन केयर कंपनी जहाँ पे हमारी मुलाकात भी हुई. ठीक है. तो जब उनके साथ हुआ, दे वर लुकिंग फॉर अ मार्केटिंग मैनेजर. तो मुझे याद है जो हमारे CEO थे उमर, उन्होंने मुझे कहा कि ज़ियाद, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और अब स्किन केयर, व्हाट आर यू डूइंग? तो क्योंकि माइंड में वही था कि यार I want to build something. It doesn't matter if it's a job, right? So I was like, look, I'm a digital marketing guy. ठीक है, मैं digital marketing स्किन केयर की भी कर सकता हूँ, सॉफ्टवेयर सर्विसेज की भी कर सकता हूँ. फॉर मी इट्स द नंबर्स दैट आर इंटरेस्टिंग. ठीक है. इट्स द ह्यूमन बिहेवियर, द बाइंग बिहेवियर, दैट्स इंटरेस्टिंग. ठीक है. वो उस तरह उसमें घुस गए. और वो क्या 2-3 महीने का जो मैंने सोचा हुआ था, क्योंकि आई वाज द फर्स्ट एम्प्लॉय वहाँ पे, तो मुझे नहीं पता था कि ये चलना भी है नहीं. मैं लाइक नेक्स्ट पेज से आ रहा था जो कि 500 लोगों की कंपनी थी विद मिलियंस ऑफ डॉलर्स. एंड देन सडनली जब वहाँ पे आया था, तो वहाँ पे उस वक्त 1 महीने में कोई 1 लाख रुपए की सेल थी. ठीक है. तो आई वाज लाइक ओके, लेट्स डू इट, बिकॉज वो था कि लेट्स ग्रो दिस थिंग, राइट. एंड देन ऑफ कोर्स जब आप इंटरेक्शन करते हो विद द ओनर्स, तो आई कुड फील के दे आर रीजनेबल पीपल, दे विल लिसन टू मी एंड दे विल अंडरस्टैंड. और फिर वही हुआ. विद इन 3 months जो है ना, थिंग्स पिक्ड अप. और फिर मैंने वो
फिर मैंने कहा ओके अब नाउ आई कैन डू दिस फॉर एज लॉन्ग एज आई वांट टू। और फिर वहाँ पे ऑलमोस्ट 3 साल वहाँ पे मैं रहा। वी टुक द सेल्स, आहिस्ता आहिस्ता हमने उसको भी ग्रो किया, टीम भी ग्रो हुई। आई थिंक बाय द टाइम आई लेफ्ट देयर वर लाइक 12 people maybe or 15, ठीक है। और हम अभी रिटेल में एंटर हो रहे थे उस वक्त, ठीक है, हो गए थे बट ग्रो कर रहे थे उसमें। तो सो टुक दैट फ्रॉम लाइक यू नो द फर्स्ट पर्सन, द फर्स्ट एम्प्लॉई ऑल द वे देयर। तो दैट वाज 2 years ago, almost 2 years ago when I left there. तो वो एक था, तो तब तक मेरा सोलिडिफाई हो गया था कि हाँ यू कैन बी यू नो एन एंटरप्रेन्योर। उसी दौरान फिर आई फाउंड जहाँ पे मैं अभी हूँ, एंड दीज गाइज वर लाइक ओके वी हैव दिस थिंग जिसको हमने यहाँ तक पहुँचा दी है, स्केलिंग का टाइम है, हमने इसको अब आगे लेके जाना है। सो वहाँ पे आई हैड अ चैट विद देम। आई वाज लाइक आपने मिल तो मुझसे मार्केटिंग के लिए रहे हैं बट आई कैन डू वे मोर, बिकॉज मैं एक और भी पूरी कंपनी को जीरो से, वहाँ पे मैं मार्केटिंग मैनेजर था लेकिन आई वाज डूइंग अ लॉट मोर देन दैट, ठीक है। तो eventually कोई 5-6 महीने के बाद they reached out to me again. They were like okay we are ready to kind of discuss the role that you wanted to play, and the stars aligned. और फिर ये जो 2-3 कंपनीज हैं अब इनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, 2 साल होने वाले हैं उसको, and it seems like it's just the start. So at every point मैं नौकरी पे ही हूँ लेकिन I've been an entrepreneur in everything, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट आई ट्राई टू टीच दिस यंग गाइज जो अभी ग्रेजुएट करके निकल रहे हैं, उनको इंटरव्यूज में बता देता हूँ कि गाइज देयर हर कोई कहता है मैं चाहता हूँ मैं 3 साल में अपना काम करूँ। तो मैं कहता हूँ ओके वेल एंड गुड, बट नो दैट यू कैन ऑल्सो बी एन एंटरप्रेन्योर अगर आपका एम्प्लॉयर अच्छा हो तो, ठीक है, वो अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो। एंड यू नो दैट वाज अ समरी ऑफ माय जर्नी सो फार, एंड दैट्स वेयर आई एम राइट नाउ। दिस इज़ रियली न्यू फॉर मी एंड आई थिंक दिस इज़ अ रियली इंटरेस्टिंग टेक ऑन कि एंटरप्रेन्योर जो है आप सिर्फ अपने काम में नहीं दूसरे के काम में भी हो सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपकी वो एक अंडरस्टैंडिंग हो। दे ट्रीट यू लाइक पार्टनर्स, व्हिच आई हैव बीन लकी कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव ट्रीटेड मी लाइक अ पार्टनर, और अपने डिसीजंस चेंज करते थे, इनिशिएटिव्स को मैं कहता मैंने ये इनिशिएटिव लेना है, दे बी लाइक ओके इफ यू कैन डू इट। सो आई गेट टू बिल्ड the thing that I want to, or the procedure that I want to, or something like that. So obviously अपने हर साइड देखनी होती है, अपना भी कारोबार हो तो आप 10 चीज़ें करना चाहते हैं, 5 नहीं होती, ठीक है। तो जब आप किसी के साथ काम करें वहाँ पे भी इस तरह होता है। और शायद ऐसे भी होते हैं ना ज़ियाद के at the end of the day it's teamwork. Yeah. So for example, अगर Zuckerberg है, so he's not just one person. Yeah. He might be an entrepreneur, but then he has to create room for other people to come in and then build along with him. Yeah, and Facebook is full of entrepreneurs. ठीक है, Zuckerberg उसका फाउंडर है, लेकिन वहाँ पे जितने लोग हैं उनके डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं, उनके अपने प्रेसिडेंट्स हैं डिफरेंट, वो सारे entrepreneurs ही हैं ना। They built something. ठीक है, so yeah, so they have to have that understanding with Zuckerberg then. Definitely वो बड़ी। तो this is a new take for me कि वो entrepreneur दूसरे के प्रोजेक्ट्स या बिजनेस में भी हो सकते हैं। I'll take you मैं थोड़ा सा और पीछे लेके जाऊंगा। I remember वो जो मैगजीन वाली चीज़ थी, and then from your college times you were selling in Africa और पता नहीं कहाँ can you मैं थोड़ा सा और पीछे लेके जाऊँ तो मुझे बताएं। And that's actually how I developed an interest in design. Okay. बहुत early on, like मैं consider करता हूँ मैं बहुत lucky था कि मैंने बहुत early on कुछ चीज़ें वो सीख ली जो लोग 10 साल बाद realize करते थे नौकरी में आने के बाद। ठीक हो गया। तो and this was one of the things कि जब मैंने कॉलेज में था और मैंने एक publications company start की अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, तो it was called Ideas Evolved Publications, right? तो उसमें we started with a blog, ठीक है, और फिर हमने कुछ मैगजीन्स लॉन्च किए, फिर एक प्रिंट मैगजीन लॉन्च किया, ये कुछ 4-5 साल के लिए चला, ठीक है। तो उससे बहुत सीखा, लाइक दैट इज़ वेयर आई थिंक आई लर्नड हाउ टू बी अ लीडर एंड हाउ टू बी मोर देन जस्ट अ फ्रेश ग्रेजुएट, ठीक है। क्योंकि वही था कि हाँ यार, आई रिमेंबर यानी कि बाय 3rd year जो वो कह रहे थे कि फलानी कंपनी का जाके सर्वे वगैरह करो, तो आई वुड समटाइम्स पिक माई ओन कंपनी एंड बी लाइक उसके कैश फ्लो के भी मैं प्रेजेंटेशन दे सकता हूँ, मैं उसकी मैनेजमेंट को भी उसकी ग्रोथ को भी दे सकता हूँ, एंड द प्रोफेसर्स दे वर गुड इनफ टू एक्चुअली बी लाइक कि हाँ ठीक है, इफ यू हैव योर ओन थिंग तो आओ प्रेजेंट करो। सो आई वुड हैव गेट ग्रेड्स बिकॉज ठीक है, तो उसमें भी वो हेल्प करता। सो या ये जब ब्लॉग स्टार्ट हुआ मैंने तभी रियलाइज किया कि अच्छा यार आर्टिकल लिख दिया आपने, आर्टिकल डजंट लुक गुड, तो पीपल वुडंट रीड, एक तो वैसे ही लोग कम पढ़ते हैं, ठीक है। सो लाइक हाउ डू यू मेक इट इंटरेस्टिंग, तो स्टार्ट इस तरह होना कि अच्छा यार जो इमेजेस अंदर डाले हैं वहाँ से शुरू किया, दैट काइंड ऑफ टेल्स यू कि ओके, फिर आहिस्ता आहिस्ता ओके यूजर इंटरफेस कैसा है, तब यूजर इंटरफेस का लफ्ज़ नहीं आता था, वेबसाइट डिज़ाइन, ठीक है, तो वही हम लोग तो फिर अंदाज़ा होना शुरू किया, ओ नहीं यार इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, एंड वी वर, ठीक है, तो वो करते करते वहाँ से ग्रो,
फिर जब स्टार्ट हुआ कि अच्छा यार ई मैगजीन हो, तो और ई मैगजीन का यही था ना कि प्रेजेंटेशन कैसी है, एंड डिज़ाइन इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ दैट, ठीक है. सो आई वाज लाइक कि ओके इस तरह मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ, अब इसको डिज़ाइन कौन करेगा, ठीक है. कुछ दोस्त वगैरह ने फेवर कर दिया, लेकिन वो एक इशू में फेवर कर देंगे. अब इवेंचुअली क्या हुआ, यूनिवर्सिटी, आई मीन योर कॉलेज इज़ वन थिंग, बट आई थिंक यूट्यूब इज़ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है. गया, मैंने कहा अच्छा यार ये फोटोशॉप होता क्या है, इंस्टॉल कैसे करते हैं, शुरू किया, पता लगा ओ अच्छा इस तरह होता है, ओ इस तरह से कवर पेज मैं बना सकता हूँ, ठीक है. करते करते एंड देन आई थिंक आफ्टर लाइक 2 weeks आई क्रिएटेड द फर्स्ट फ्यू पेजेस और enjoy करना शुरू किया उसको, राइट. एंड आई रिमेंबर व्हेन आई शोड इट टू माय को-एडिटर, so she was like, wait a minute, you're doing this now? So I was like, I guess I am. So वहाँ से फिर करके फिर मैगजीन्स में फिर मुझे डिज़ाइनर्स की उस तरह से दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ी अपने काम के लिए, लेकिन मुझे उस वक्त अंदाज़ा नहीं था. आई थिंक वो फोटोशॉप को हाथ लगाना ना, दैट काइंड ऑफ चेंज्ड माई ट्रेजेक्ट्री. सही है. कॉलेज से ही फर्क पड़ गया था. माई होल परस्पेक्टिव चेंज्ड व्हेन आई रियलाइज्ड कि ओ व्हाट गुड क्वालिटी ऑफ मैसेजिंग इज, ठीक है. डिबेट्स में हम ये चीज़ करते हैं, मैं डिबेट्स भी करता था पहले, तो उसमें भी एक होता है ना कि हाउ अ गुड डिबेटर इज एबल टू एक्सप्लेन अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग इन अ वेरी लाइक जो एक चीज़ यानी कि तीसरी जमात के बच्चे को भी समझ आ जाए. सो जब आप कोई चीज़ पब्लिश कर रहे हैं तो यू आर लाइक यार मैं कोई उसको ऐसे प्रेजेंट करूं कि इतना बड़ा आर्टिकल है, लेकिन वो जो उसकी स्किमिंग वैल्यू बहुत अच्छी हो, उसके अगर लोग अगर पूरा ना भी पढ़ें और सिर्फ ब्लर्ब्स पढ़ लें तो दे काइंड ऑफ गेट इंटरेस्टेड इनफ कि वो फिर शायद पूरा आर्टिकल पढ़ लें. बिल्कुल. तो ये होता है ना कि अच्छा यार, एंड ठीक है, अगेन हाइंडसाइट में नाउ आई रियलाइज कि अच्छा तब से ही वी स्टार्टेड लर्निंग कि हाउ द ह्यूमन ब्रेन वर्क्स एंड हाउ टू नॉट मैनिपुलेट दैट बट हाउ टू टैप इनटू द प्री एग्जिस्टिंग biases or you know inclinations, ठीक है. सो वहाँ से जो है वो चीज़ फिर स्टार्ट हुई. फिर मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं डिज़ाइनर बन गया, लेकिन मैं एक नोविस डिज़ाइनर बन गया, ठीक है. कॉलेज में दैट हेल्प्ड. मेरे अपने स्टार्टअप में तो ऑब्वियसली इट डिड. आई एक्चुअली स्टार्टेड गेटिंग लाइक सब लोग इंटर्नशिप्स कर रहे थे कॉलेज में, मैं जॉब्स कर रहा था, ठीक है. सो आई डोंट थिंक मैंने कोई भी इंटर्नशिप की, शायद एक की होगी, ठीक है, प्लान 9 में, ठीक है. सो अदर देन, और वो भी डिज़ाइन पे मिली थी, ठीक है, कि अच्छा इसको फोटोशॉप आता है. एंड जब बाय द टाइम फिर जब मैं जॉब मार्केट वगैरह में आया तो यही था कि मैं मॉकअप्स बना लेता था ऐप्स के, ठीक है. सो दे लाइक अच्छा ये बिजनेस ग्रेजुएट है, साल हुआ है, ये ऐप्स के मॉकअप्स बना रहे हैं, ये डिज़ाइंस को समझता है, ये यूज़र इंटरेक्शंस को समझता है. वाई? बिकॉज कोई 21 साल की उम्र के अंदर जब डिज़ाइनर नहीं मिल रहा था तो यूट्यूब खोल के फोटोशॉप देखना शुरू कर दिया. और तब से लाइक आई एम कन्विंस्ड कि भाई यू कैन डू एनीथिंग विदाउट डिज़ाइन, ठीक है. अगर आपने घर में रहना है, ये भी पॉडकास्ट हमारी हो रही है, द कलर यू चोजन फॉर दीज चेयर्स, ठीक है, जो लाइटिंग है इस वक्त हो रही, ठीक है, जिस तरह भी आप वो सारा. सो हमारी बातों के साथ ये प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है, राइट. एंड ऑफ कोर्स जो गेस्ट है sitting in this environment, I feel a certain way mentally, which is why I'm able to speak a certain way, ठीक है. एंड अगर आप देखें तो ये सारा का सारा इज बिकॉज ऑफ डिज़ाइन, बिल्कुल सही, ठीक है. आपके एनवायरनमेंट का डिज़ाइन, आपकी मीडिया का डिज़ाइन, वो सारा. सो तब से एक किस्म का बहुत आई हैड दिस इंक्लिनेशन टूवर्ड्स इट. और ट्रेन में बिजनेस मैनेजमेंट में हुआ था, और फिर इंटरेक्शन जब होता था डिज़ाइनर्स के साथ, डेवलपर्स के साथ, ठीक है. डेवलपर्स भी आप कह लें कि एक तरह से डिज़ाइनर्स को ऑपोजिट थे, कि दे वर लाइक कि भाईजान इट्स वर्किंग, इट्स गुड, whereas designers were like it doesn't look good, ठीक है. And I was the guy in between. I was like robust engineering and good design. ये अगर इनमें से एक चीज़ भी मिसिंग होगी, you can't build stuff, right? और आप देख लें गाड़ियाँ खड़ी हैं हमारी बाहर, एक बड़ी अच्छी गाड़ी हो लेकिन उसका डिज़ाइन फजूल हो वो नहीं, right? उस तरीके से इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकते. In NextBridge, I had one of my general managers over there. वहाँ पे 4-5 general managers थे. So वो उनकी एक लाइन थी, code is poetry. Okay. And that brought everything together for me. Where I was like, you're right. Because अगर आपने कोड लिखा हो, जो डेवलपर्स हैं वो ये चीज़ जानते होंगे, खूबसूरत कोड, आपको वो आप उसको देखते हो ना, अगर आप कोड पढ़ना नहीं भी आता, you can tell that it's beautiful. And that's what he used to say, कि you know एक अच्छा डेवलपर है, वो कोड को भी ऐसे ही लिखता है जैसे ये कोई आर्ट है, जैसे कोई पेंटिंग है. एंड यू कैन स्टार्ट टेलिंग, जब आप उसको साइड बाय साइड रखते हो, कि ये खूबसूरत कोड है, ये दिस इज नॉट सो मच. और फिर जो डेवलपर्स उस चीज़ को समझ जाते हैं ना, उनका अपना लेवल वो एलिवेट हो जाते हैं. दे स्टार्ट बिकमिंग लीडर्स बिकॉज दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग. सो
that's how this thing kind of code is poetry. ठीक है. So art and engineering has to go hand in hand. Hand in hand. नहीं. I think Ziad, we definitely, every company can appreciate, a manager like you who understands that value of design, but then also, knows about how to, build those bridges. Either it's, with the product team, with the sales team, or with the developers team. So, I think what I've experienced so far, in whatever experience I have, कि वो creativity और वो जो you're talking about good design as well, उस तरह की चीज़ें, but somehow companies who which are not able to connect it with their core, so they do not sort of succeed in that sense. So but then please tell me कि how sort of how that process goes for you when you have to convince those executives कि hey, this is why you should invest in design, this is what good design is, why this matters. तो वो जो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो बिजनेस ओनर्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो क्या प्रोसेस है आपका? हाउ डू you make them believe in that design needs to be good? So see, the devil is in the details. Okay. Because this is the part जहाँ पे आपको जाके होता है कि अच्छा यार, your endeavor, your job, whatever, ये तभी सक्सीड करेगी अगर आप ये nuances अंडरस्टैंड करें. ठीक है कि यार एक डिज़ाइनर है, मैं उसके साथ इंटरेक्शन करता हूँ, आपके साथ में रहता था. आई रिमेंबर एक मरतबा आपके ऑफिस आया था इन योर कैबिन एंड आई वाज लाइक यार, आई जस्ट हैड लंच एंड आई वाज लाइक यार वासिफ कोई खूबसूरत सा डिज़ाइन दिखा यार, बिकॉज आई जस्ट वांटेड दैट लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ ड्रग, राइट? कि यार एंड यू शोड मी सम ऑफ द थिंग्स यू वर एक्सपेरिमेंटिंग विद एंड आई वाज लाइक वो यार ये कितना खूबसूरत, यार ये इस तरह होना चाहिए, ये ठीक है. एंड आई गॉट दैट like 15-minute hit and then I went back to my my workstation. So अब उसमें होता है कि so I appreciate art and good designers, good artists, ठीक है. But then when I meet with the CEO जो कहे कि ज़्यादा what are the sales numbers, right? So I'm like okay, अब you will remember a lot of this. मैं marketer हूँ, ठीक है, by training, ठीक है, not a designer, but how will I sell something online if my ad doesn't look good, if the ad doesn't have certain elements, वो balanced नहीं है, उसकी fonts वगैरह बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, it should appeal to my target audience, ठीक है, वो masses हैं या कोई niche है या क्या है, ठीक है. And we've had countless conversations there. So I'm like okay, I need design to be excellent so that it can appeal to the audience, जो कि audience में sort of program कर रहा हूँ in my like Facebook advertising में या Instagram advertising में, ठीक है. और जब वो लोग देखें तो उनको ये अपील करें, वो क्लिक करें, फिर वो मेरी वेबसाइट पे जाएं. वेबसाइट इस तरह से डिज़ाइन हो कि वो एक पूरी फनल है, ठीक है, कि वो अच्छा इस तरह से करते करते प्रोडक्ट पे पहुंचेंगे, साथ उनको अपसेल्स इस तरह से नजर आए कि कन्वीनियंट हो उनके लिए कि ओ मैं ये ले रहा हूँ तो साथ ये भी ले लूँ, ठीक है. सो मेरी सेल्स के लिए, ओवर सेल्स के नंबर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर एलिमेंट पे वो जो एक ऐड था, उसके बाद वेबसाइट के बाद कार्ट किस तरह से अपीयर हो रही है, उसमें अपसेल्स किस तरह से अपीयर हो रहे हैं, और फिर जब वो चेकआउट कर जाते हैं तो उसके बाद जो उनको कॉन्फर्मेशन मैसेज आ रहा है दैट नीड्स टू लुक गुड, ठीक है, दे शुड फील के ओ उनको मजा आया शॉपिंग करने का, बिकॉज दैट हैप्पीनेस बेसिकली लीड्स टू मोर सेल्स. एंड देन नाउ आई नीड कि जो हमारी ऑर्डर फुलफिलमेंट टीम है, जिसका ना डिज़ाइन से कोई ताल्लुक है ना उसका मार्केटिंग से कोई ताल्लुक है, लेकिन अगर मैंने रीसेल्स करवानी है, अगर मैंने वो उनको रिटर्निंग कस्टमर बनाना है, इट इज़ इन माई इंटरेस्ट कि एज अ मार्केटिंग मैनेजर मैं सप्लाई चेन जो है उसको ऊपर नज़र रखूँ कि यार ये प्रोडक्ट 2 दिन में मिलना चाहिए इसको, बिकॉज द आयरन इज हॉट. जो ही उसको 2 दिन में मिलेगा, वो हो सकता है कभी कभार डब्बा खोलते ही उसको इतना पसंद आए वो फ़ौरन रीऑर्डर कर दे, लेकिन अगर उसको हफ्ते बाद मिले तब तक तो उसकी सिचुएशन चेंज हो गई होगी, तब तक वो शायद उसको याद भी ना, अच्छा मैंने ये ऑर्डर किया था, ठीक है. बट व्हेन दे परचेज समथिंग ऑनलाइन, अगले 3-4 दिन तक दे आर इन दैट माइंड फ्रेम, अभी उन्होंने अपने सारे पैसे खर्चे भी नहीं है, ठीक है. बट इफ द प्रोडक्ट इज रीचिंग देम आफ्टर लाइक 2 weeks, जो कि हो जाता है अक्सर, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं यार 2 हफ्ते इंतजार करना पड़े, लाइक बैड कंपनीज, राइट. सो वो जो है ना आपकी सारी चीज़ें आपस में लिंक हो जाती हैं मैनेजमेंट के साथ कि एज अ मैनेजर, ठीक है, मैंने अब वो हर चीज़ देखनी है. सो ऐसा होता था कि अच्छा यार डिज़ाइन में भी घुसा हुआ है, सप्लाई चेन में भी घुसा हुआ है, ठीक है, ऑर्डर फुलफिलमेंट में भी घुसा हुआ है, इवन जो पीछे से प्रोडक्ट्स वो आ रहे हैं, मैन्युफैक्चर होके आ रहे हैं, उनके ऊपर भी मैंने नज़र रखी हुई है कि मेरी हर महीने इतनी सेल्स हो जाती हैं,
इसका मतलब है ये 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा स्टॉक। मुझे 3 महीने पहले कॉन्फर्मेशन चाहिए फ्रॉम द सप्लाई चेन टीम कि भाई ये आ रहा है, वरना मैं अभी एडवर्टाइजिंग रोक रहा हूँ, वरना मेरा खर्चा हो जाएगा और मेरे सेल्स के नंबर वो शो नहीं होंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैं शो नहीं कर सकूंगा, राइट? सो दैट एक्सटेंट, राइट? सो इमेजिन करें कि वो सारा कुछ स्टार्ट डिज़ाइन से ही होता है, ठीक है? क्योंकि एंड पे उनको जब प्रोडक्ट भी एंड पे मिला, जो मैं सप्लाई चेन की बात करूँ, प्रोडक्ट का क्या डिज़ाइन है, और फिर वो जब उन्होंने वो अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस कैसा है, उसके अंदर उनको क्या वो कोई साथ एक खत भी मिला है जिसके अंदर थैंक यू कह रहे हैं हम उनको, दैट इनकरेजेस देम टू शेयर ऑन सोशल मीडिया और व्हाटएवर, और रीऑर्डर, ठीक है? तो एवरीवेयर दैट डिज़ाइन काइंड ऑफ गोज। नाउ द मेन प्रॉब्लम इज कि जो मैंने आपसे बात की कि वो पूछ रहे हैं कि ज़्यादा सेल्स किधर है, ठीक है? एंड आई एम लाइक ओके, मैंने इस तरह करनी है। अब मेरी मार्केट में जो मेरी ऑडियंस है उसके कुछ बायसेस हैं। आई एम वर्किंग विद अ वर्ल्ड क्लास डिज़ाइनर लाइक योरसेल्फ, ठीक है? और वो कह रहा है कि यार ज़्यादा ये तो पुराने डिज़ाइंस हैं, सही है, ये हुई ना, ये चीज़ हुई। एंड आई एम लाइक यार वासिफ, आई एग्री विद यू, इफ इट वाज मी आई वुड बी देयर। बट द प्रॉब्लम इज, अगर मैंने एक एंटी एजिंग क्रीम बेचनी है एक 50-year-old लेडी को, शी हैज़ वेरी डिफरेंट सेंसिबिलिटीज, उनको अनफॉर्चुनेटली वही एड चाहिए। अब सेलिंग वो करता है, एंड दैट इज वेयर दिस थिंग लाइज कि जो एक अच्छी टीम की फिर आपस में ये कोहेजन होती है, जो डिपार्टमेंट के लीडर्स होते हैं उनकी एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि हे आई वॉन्ट टू डिज़ाइन लाइक दिस, लेकिन अब वो है ही उस तरह, तो चलो क्या। एंड एज अ मार्केटर फिर मुझे ये भी होता है कि हे मेरे माइंड में है कि वो ये चीज़ अपील करेगी, लेकिन मैंने एक्सपेरिमेंट जरूर करना है। सो बाय द वे वासिफ, वो जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स हैं वो भी रखो, ठीक है? एंड आई एम गोना रन लाइक मे बी अ 1 month एक्सपेरिमेंट और 2 month एक्सपेरिमेंट, ठीक है? क्या पता वो भी चल जाए, राइट? बिकॉज थिंग्स चेंज आफ्टर एवरी 2 years, ठीक है? तो ये चीज़ें चलती हैं। जो उस वक्त हम लोग 25 year वालों को टारगेट कर रहे थे, वो सारे अब 30 साल के हो गए, ठीक है? सो अब देखो वो 30 years old की भी तो वो थिंकिंग आ गई ना। पहले हम 30-year-old वालों को शायद कोई कुछ एड्स दिखाते ही ना, लेकिन नाउ वी विल बिकॉज थिंग्स चेंज, राइट? तो दैट इज व्हाई यू कीप एक्सपेरिमेंटिंग, एंड yeah, बिल्कुल सही है। एंड इफ आई ऐड टू इट, यू नो, द वे यू एक्सप्लेन्ड इट कि वो जो डिज़ाइन की, यू नो, यू स्टार्टेड ऑफ विद कि अच्छा वो एड का डिज़ाइन कैसे है या वो इनिशियल ग्राफिक्स कैसे हैं, देन यू वेंट इनटू, यू नो, द होल एक्सपीरियंस ऑन द वेबसाइट एंड, यू नो, चेकिंग आउट एंड देन द प्रोडक्ट एक्सपीरियंस। आई थिंक अगेन यही चीज़ कि जिस तरह कुछ लोग इसको यूज़र जर्नी कहते हैं, बट देन यू वर वेरी कॉन्शियस अबाउट द ब्रांड एक्सपीरियंस ओवरऑल, कि एक वही, फॉर एग्जांपल मी, आई वाज वर्किंग देयर एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर, बट आई वाज मे बी, यू नो, मोर फोकस्ड अबाउट कि अच्छा वो ब्रांड इमेज कैसे बनाना है या विजुअल्स कैसे करने हैं या कैंपेन, यू नो, व्हाटएवर जो हमें लगता है कि हम इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। बट विद दिस सॉर्ट ऑफ, यू नो, विजन कि एक बंदा पूरी चीज़ को देख रहा है कि अच्छा ये जो मेरा यूज़र ने आना है, इसको मैं जब अपने फनल के अंदर लेकर आ रहा हूँ, वेबसाइट पे भी वही एक्सपीरियंस आए, आगे भी वही एक्सपीरियंस आए, उससे है। सो दिस सॉर्ट ऑफ, यू नो, अगेन अवेयरनेस एंड देन, यू नो, क्या कहते हैं, डिलिबरेट actions, this is again a different domain, but still, you know, it's design in a very, very, you know, economic and business aspect. And I've been trying to, you know, sort of highlight this to other creatives as well जो इस series पे आते रहे. But to be honest, I learned a lot of that business factor कि how to, you know, balance creativity while we were working together in that skincare brand. कि वो ये भी ठीक है, क्रिएटिव आइडिया कैंपेन का, मतलब मॉडल को क्या पहनाना है, कैसे कपड़े, ट्रेंड की बातें वगैरह, बट दिस थिंग कि अच्छा हाउ टू, यू नो, एंकर इट एंड देन, यू नो, एट एवरी स्टेप मेक इट, यू नो, इम्पैक्टफुल, मेक इट, यू नो, मोर रेलिवेंट। सो बिल्कुल, और ये तो मार्केटिंग साइड है ना, जहाँ पे इट्स रिलेटिवली ईजियर टू अंडरस्टैंड। सही, आई एम अ जनरल मैनेजर नाउ, ठीक है? मार्केटिंग कोई और देख रहा है, ठीक है, व्हाट नॉट। अब एज अ जनरल मैनेजर अब मेरे कंसर्न्स हैं, रिक्रूटमेंट भी मेरे अंडर आता है, सही है, एम्प्लॉय रिटेंशन भी मेरे अंडर आती है, सही है, सेल्स वालों के साथ भी मैं मीटिंग्स कर रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ। अब ठीक है, वो सेल्स वाली साइड पे वही सारी चीज़ें चल रही होती हैं, बट देन अगर मैंने एम्प्लॉय रिटेंशन करनी है, नाउ आई एम कंसर्न्ड अबाउट द डिज़ाइन ऑफ द ऑफिस, बिकॉज वो भी मेरे एक किस्म के कस्टमर्स हैं कि आई वॉन्ट देम टू वॉन्ट टू वर्क विद अस, सही है, ठीक है? जो रिक्रूटमेंट के लिए आ रहे हैं, आई वॉन्ट के जब वो ऑफिस एंटर हों उनको कुछ एक्सपीरियंसेस मिले। अभी हम बात कर रहे थे कि बिकॉज वी वर्क विद द क्लाइंट्स इन द वेस्ट, तो हम रात को भी हमारा ऑफिस ऑन होता है, सो वी हैव पीपल कमिंग इन, दे नो कि यार हम तो यहाँ पे रात को 3-4 बजे तक रहना है। इफ़ दे एंटर एंड इट्स लाइक अ वेरी डिंजी काइंड ऑफ प्लेस, जहाँ पे जो सारे हमारे डिज़ाइनर्स हैं वो लाइटें ऑफ करके बैठे हुए हैं,
ठीक है, तो वो तो ये कहेंगे यार ये पता नहीं कौन सी जगह, क्योंकि होता है शेडी किसी शेडी ऑफिस में। अब उनको तो नहीं पता कि यार ये लाइटें ऑन भी होती है। सो आई एक्चुअली हैव टू डू दैट, लाइक मुझे होता है कि शाम को 5-6 बजे के बाद मुझे एक्चुअली ड्यूटीज लगाना पड़ती हैं एडमिन स्टाफ की कि टर्न ऑल द लाइट्स ऑन, क्योंकि कभी भी कोई भी गेस्ट आ सकता है, कभी भी कोई भी स्टेक होल्डर आ सकता है, ठीक है, एंड द फर्स्ट इंप्रेशन इज देयर। सो इमेजिन करें अगर कोई अभी एक 22-23 साल की लड़की है, फ्रेश ग्रेजुएट है, उसकी पहली जॉब है, वो इंटरव्यू देने आई है, अक्सर तो अपने पेरेंट्स के साथ आ जाते हैं इंटरव्यू देने, ठीक है, तो उसके फादर तो बाहर से ही हो जाएंगे कि भाई ये कौन सी जगह है, उधर कोने में अंधेरे में कौन बैठा हुआ है, ठीक है। Now as a general manager I have to think of that entire experience. जो वहाँ पे बाय द वे काम कर रहे हैं, जो मेरे एम्प्लॉइज हैं, दे आर लाइक सर लाइटें चुभ रही हैं, हमने 4-4 घंटे स्क्रीनों को देखना है, आप हमें थोड़ा सा करने दें ताकि वी कैन रिलैक्स एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। सो आई काइंड ऑफ हैव टू बी लाइक ओके हाउ डू आई मेक देयर एनवायरनमेंट रिलैक्सिंग एज वेल, कौन सी लाइट चूज कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जो रिसेप्शन एरिया है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है फ्रॉम लेट्स से प्रोडक्शन वाला एरिया, लेकिन देन वी आर एन ओपन ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे एंड तक भी नजर आ रहा है। सो देयर आर दीज प्रोज एंड कॉन्स। ऑफ कोर्स रात के 12 बजे के बाद जो है, क्योंकि सुबह 5-6 बजे तक लोग काम करते हैं, तो आफ्टर 12 o'clock नॉट अ लॉट ऑफ पीपल कम, सो वहाँ पे मुझे होता है कि अच्छा देयर हैज टू बी लाइक अ मिनिमम लाइटिंग दैट हैज टू बी देयर सो दैट द प्लेस इज स्टिल functional, it's presentable, but yeah, ठीक है, some of the guys can relax because होता है like हम तो एटलीस्ट थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा सा लिबरल हूँ कि ठीक है यार आप 1 घंटा रेस्ट कर लें, ठीक है, सो दे हैव टू हैव दैट रेस्ट वाली एक एनवायरनमेंट होनी चाहिए जहाँ पे लंच वाले एरिया, वहाँ पे जाके रेस्ट कर सकते हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो दिस लाइक डिज़ाइन काइंड ऑफ गोज एवरीवेयर, ठीक है। सो एज अ सीनियर मैनेजर फिर आगे जो कंपनी के ओनर्स हैं, सीईओज हैं, उनके लिए भी चीज़ ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। एंड यहाँ पे आई वुड लाइक टू मेंशन जो नेक्स्ट ब्रिज के अंदर मेरे सीईओ थे, ठीक है, सो ही वाज एट द टाइम ही मस्ट हैव बीन इन हिज 50s, ठीक है, तो मैं उनकी हाफ एज का था। ही यूज्ड टू लिव इन यूएस एंड वो अक्सर मुझे कहते थे कि यार ही हैड दिस थिंग, ही वाज लाइक कि व्हेन यू कम इनटू माय गैराज यू सी माय कार्स, दैट विल टेल यू दैट आई एम इनटू मोटर स्पोर्ट्स, ठीक है। I don't have to sit you down and be like, hey, मुझे मोटर स्पोर्ट्स का भी शौक है, ठीक है। And what he was basically saying was कि what you see, ठीक है, और अब जिस तरह से उन्होंने अपना गैराज अरेंज किया होगा, if he wants to project a certain image, he's doing that, and that was because just the start of my career, right, after college. तो बहुत जल्दी मुझे वो एक एक्सेस मिल गया into the thinking of a very successful entrepreneur who understood it, कि यार इट नीड्स टू लुक ब्यूटिफुल, ठीक है। और उन्हीं का जनरल मैनेजर था जो कहता था कोड इज पोएट्री, सो यू सी कि उनका विजन किस तरह ट्रांसलेट होता था आगे, राइट। सो ये चीज़ें ना बड़ी, और वो मुझे भी लाके उन्होंने सच में उन्होंने कहा यार इट नीड्स टू लुक गुड, ठीक है। And if I may add something here, Ziad, the way he was organizing his garage, it needs to look beautiful, but maybe Ziad, he knew what sort of message he is trying to convey. Yes, so exactly. He was deliberate as well. Yeah. Okay, yes, structure, beauty structure, but then message and campaign and the agenda behind it. बिल्कुल. He knew कि वो क्या कैसा इमेज प्रेजेंट करना है। एग्जैक्टली, तो वो उनका यही होता था कि अच्छा यार जो हमारी फिर कंपनी की ब्रांड है, क्योंकि क्लाइंट्स तो एक और चीज़ को देखते हैं, लेकिन जो आपके एम्प्लॉइज हैं, अब रिक्रूटमेंट वालों को भी तो हेल्प करना था ना सीईओ ने। सो ही वाज लाइक ओके द ऑफिस नीड्स टू बी अ सर्टेन वे, हमारे इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, इस तरह का हमारा कंटेंट यहाँ पे, इस तरह के फोटोशूट करो, फलानी एक्टिविटीज़ करवाओ, सो दैट पीपल सी के वर्क कल्चर क्या है। सो वी आर ऑल्सो सेलिंग टू देम, right? And I got like the first row seat into that mind that helped me develop to the extent कि अब मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे मेरे होने का जो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है with the owners of the company, वो है ये कि I bring this to the table where they confess कि hey हम एक certain तरह से सोचते हैं और फिर हम उसके अंदर थोड़ा सा टनल विजन हो जाता है, बट वी नीड समवन टू कम एंड टेल अस कि हे यू गाइस आर डूइंग दिस रॉन्ग। सो क्रेडिट टू देम, बिकॉज अक्सर जो लोग इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज खोल लेते हैं वो तो सुनते ही नहीं, वो कहते हैं हमें सब कुछ आता है, बट दे हैव जेन्युइनली दे ब्रॉट मी इन एंड दे गेव मी अ सीट एट द टेबल एंड दे वर, जब मैं बात करता था आधे से ज़्यादा चीज़ें हैव बीन इम्प्लीमेंटेड एंड आई लाइक इट्स रियली एडमायरेबल, ठीक है। On the flip side, I have seen now more than ever कि एक बिजनेस बनता कैसे है। वो जो कहा है ना 2 महीने पहले कैफे भी लॉन्च कर दिया ना, हम लोग ओह सो ये जो नौकरी वाले लोग नहीं होते वो ये करते हैं, ठीक है। सो नाउ आई एम ग्रोइंग, ओके। सो आई थिंक आई बीन वेरी फॉर्चुनेट इन दैट रिगार्ड कि मुझे बिल्कुल सही टाइम पे सही एक्सपोजर मिल रहा है, एंड मेरी फिर एफर्ट ये होती है कि अच्छा जिस तरह मुझे लोगों ने सिखाया मैं भी आगे पास ऑन करूँ, वो चीज़। तो या दैट्स द
And what I'm experiencing, हम काफ़ी से बाद भी मिले, but what I'm seeing right now in front of me is someone who innately understands design and knows कि अच्छा वो मतलब वो खुद से प्रैक्टिस भी करता है, उसने चीज़ें देखी भी हैं, वो लर्न भी कर रहा है, बट इनेटली ही नोज कि अच्छा वो इस चीज़ में अगर मैगजीन में करना है तो ये देयर नीड्स टू बी सम स्ट्रक्चर है. अगर वो वेबसाइट कर रहा है उसमें भी है. देन व्हेन यू टॉक्ड अबाउट योर टाइम एज अ मार्केटिंग मैनेजर, you were taking care of that sort of again brand experience, but now maybe you again innately working in designing an organization. वो जो आप अगर इंटीरियर की वो बातें कर रहे हैं कि you're worrying about कि वो जो अगर लड़की आएगी उसके उनके अब्बा कैसे देखेंगे या जो लोग हैं वो किस तरीके से, तो now you're looking at the whole thing and then you're trying to fix things कैसे डिजाइन वाइज कैसे. अब एज अ जनरल मैनेजर आई शुडंट केयर कि जो एक रिक्रूटमेंट की जो एक कैंडिडेट आ रही है उसके फादर क्या सोचेंगे, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, इन द रियल वर्ल्ड if my recruitment department is having problems because of the fact कि हम night shift में हैं, that's my headache. So छोड़ो किताबों वगैरह को, that matters, right? So all of that kind of goes hand in hand. अच्छा, एक चीज़ जो बड़ी क्रूशल है हमारी तरह के लोगों जो शायद जो इस तरफ की जर्नी से आते हैं ना, जो अगेन आर्ट डायरेक्टर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, क्रिएटिव्स हैं, हमें थोड़ा सा वक्त लगता है. एंड आफ्टर वर्किंग विद एक्सपीरियंस मैनेजर्स लाइक यू एंड वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड मैनेजर्स लाइक यू, देन वी अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें कैसे इंप्लीमेंट होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर. बट टेल अस अबाउट दिस थिंग के you work with senior level people and executives and CEOs. How do you sort of make them realize the value of good design or creativity, or telling them कि अच्छा यार ये अगर चीज़ करनी है तो इसका इस वजह से तो करनी है, बट वो जो रिलेशनशिप है और वो जो सारी डायनामिक है वर्किंग विद CEOs and वर्किंग विद हाई लेवल एग्जीक्यूटिव, व्हाट इज दैट? सो वन ऑफ द things that I learned as a marketer was कि don't tell, show. ठीक है, मैं आपको ज़ुबानी एक चीज़ बताऊंगा, that is not going to be as powerful as me demonstrating it. सही है, right? So when I work with with the owners or the senior managers जो आप कह लें कि शायद ये वाली साइड उनकी इतना नहीं अंडरस्टैंड करते, कि दे आर लाइक कि अच्छा यार एक चीज़ तो पढ़ी हुई है तो क्या फ़र्क पड़ता है, पढ़े रहने दो. ठीक है, वाई इज ज़्यादा बीइंग सो लाइक इतना आग बबूला क्यों हो रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ क्यों पढ़ी हुई है. ठीक है, until I actually remove that thing and clear that up, and then they enter the room and they're like, whoa, okay, ये वही जगह है. And then I'm like, that ये इसलिए अब फलाना काम भी करें. Okay. So this is okay. So मैं जब भी जाता हूँ तो बात होती है, I'm like, hey, इस तरह होना चाहिए. Often times they have so much experience, उन्होंने कंपनीज बिल्ड की हैं, they're like नहीं ज़्यादा ये नहीं, इस तरह से नहीं. सही. लेकिन क्योंकि मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ with in नेक्स्ट ब्रिज और वो like I said millions of dollars, right? So अगर उसका ओनर मेरी बात सुन सकता था तो मुझे हमेशा ये होता कि ओके ठीक है, हाँ सही है, आप सही कह रहे हैं ना. आई नो मेरे पास 2 हफ्ते हैं या 2 महीने हैं, मैं क्या करूँ कि rather than telling them I show them, right? और फिर होता ही है कि ओके here's what I'm gonna do, मैं अपना सर नीचे करके फलानी चीज़ करता हूँ, उसका जब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आएगा तो आई विल से कि हे देखो ये यहाँ तक बिल्ड हो गया, नाउ आई नीड दिस. एंड वहाँ पे समटाइम्स आई टेक अ स्टैंड, आई गो लाइक नहीं भैया मुझे चाहिए, आप मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं. ठीक है, एंड दैट हैपेंस, राइट? तो एंड देन अगर उनको वो फिर वो देख भी लेते हैं कि अच्छा यार इसने इतना कर लिया, अब ये चीज़ रह गई है तो चलिए ये इसको. And then when suddenly I get that thing, so then I'm able to demonstrate कि oh, this is what that means, right? So जिस तरह अगर वो like my current employers when they hired me, they were very humble about it. तो ऐसा नहीं है कि मैंने जाके जी उनको कहा आपको तो ये भी नहीं आता वो भी नहीं आता. They were very humble about it. They were like we know कि we are lacking in a lot of things. आप आसपास देखोगे आपको 10 चीज़ें टूटी हुई नजर आ जाएंगी, लेकिन we are so spent from up here, like हम clients को भी देख रहे हैं, हम लोग growth को भी देख रहे हैं, हम लोग payroll भी देख रहे हैं, ठीक है, we're like doing everything, right? But we need someone जो कि आए और हमारा थोड़ा सा जो है ना हमारी नज़र डाले दिलवाई चीज़ों के ऊपर और कुछ चीज़ों को टेक ओवर भी करे. तो आई थिंक one of the first things I did was in the first 10 days मैंने लाइटें चेंज करवा दी ऑफिस की. ठीक है, तो देवर दीज कोल्ड लाइट्स थी और रात को हम लोग काम करते थे तो देयर वाज नो नेचुरल लाइट कमिंग इन, राइट? सो मुझे लगता है कि द ऑफिस डिड सीम अ बिट डिंजी, बट वो होता है कि जब वहाँ पे होते हैं तो आपको लगता है कि हाँ इसमें क्या मसला, ठीक तो है. ठीक है, लोग भी कंफर्टेबल हो जाते हैं. ठीक है, सो आई वाज लाइक नहीं, वो करते करते अब वो क्योंकि एक छोटी चीज़ थी, लाइट्स का ज़्यादा बड़ा नहीं था खर्चा, वही एग्जिस्टिंग ही लाइट्स को बस मैंने उसका कलर चेंज करवा दिया. तो वो जब व्हेन दैट हैपेंड तो वो था तो एक
छोटा सा एक्सपेंस था, कोई बहुत ज़्यादा मेरे जो मैनेजर्स थे उन्होंने कोई बहुत बड़ा मुझे वो भी नहीं किया था कि फेवर भी नहीं किया था कि तुम्हारे कहने पे कर रहे हैं. बट व्हेन दैट हैपेंड एंड एवरी एम्प्लॉई हु वाज एंटरिंग वाज लाइक वो ये क्या है, ये डिफरेंट ऑफिस है. एंड देन many of those employees would randomly come to the CEO and they'd be like, sir, बिल्कुल ऑफिस ही चेंज हो गया. So he would start getting that reinforcement, right? So that would जो मेरे लिए फिर थोड़ा सा हो जाएगा कि देखा मैंने कहा था ना. एंड देन दे वुड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा यार ओके अगर इस लड़के ने कुछ कहा है तो फिर इसने उसके ऊपर किसी तरह से डिलीवर भी किया है. एंड दे आर गेटिंग रीइंफोर्समेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस जिसको हम डिजिटल मार्केटिंग में सोशल प्रूफ कहते हैं. ठीक है, तो वो उनको वहाँ पे वो मिल रहा है. ठीक है, सो दे आर गो लाइक ओके नहीं यार ये कोई बात करता है तो ठीक करता है. सो आई एम लाइक ओके अब उस सक्सेस की बेसिस के ऊपर मैं बिल्ड करूंगा. एंड देन एज उनका ट्रस्ट मेरे पे और बिल्ड होना शुरू हो जाएगा एंड वाइस वर्सा. बट इवन देन you have to prove yourself every day, every month, ठीक है, every year. और मैं तो like I don't take things for granted. सही है. ठीक है, तो like I said, I was in one company, वहाँ पे मैं entrepreneur था. 3 साल बाद I was like I'm no longer an entrepreneur. It seemed like I'm reverse में जा रहे. So I don't take it for granted anymore. I'm like hey, as long as it kind of works. And उम्मीद यही है कि अगले 50 साल मैं अल्लाह करे वहीं पे काम करूँ अगर इतनी जिंदगी रही तो ये चीज़ें फिर तो अगर उन मैनेजमेंट के साथ आपको वो रेसिप्रोकेट होता जा रहा है, आई एम लाइक कि यार कंटिन्यू. अदरवाइज अगर नहीं वो कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही तो यू कैन लाइक यू शुड सी कि अच्छा यार ठीक है मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करना है एक हद तक कुछ सालों तक. अगर उसके बाद आई एम नॉट गेटिंग a certain thing, तो then I am kind of free to explore. और वो बड़ी frank conversation हो सकती है with the owner of the company कि hey यहाँ पे हमारा vision अब उस तरह से अलाइन नहीं कर रहा. And it's totally fine, कोई मसला नहीं होता. It's all good and good employers also understand कि we work together, it was good. ठीक है, but जो है अगर ये आपकी रेपो एक डेवलप हो जाए with the senior management or with the owners or with the state of the company, तो वो फिर then it's a lot of fun. ठीक है. So you're saying like you have to build the credibility step by step. Again, I think this is again maybe it comes naturally to you, but what you just told us कि don't tell, show. Yeah. So उस तरीके से वही जब आप एक दफ़ा एक चीज़ करके दिखा देंगे, वो छोटे से अगर बल्ब भी चेंज किए लेकिन वो आपने इम्पैक्ट क्रिएट करके दिखा दिया. सो मे बी नेक्स्ट टाइम जब आप जाएंगे कोई और चीज़ बात करने के लिए कि अच्छा इतना बजट स्पेंड करना है कैंपेन के ऊपर या whatever thing is, so then वो credibility is building like that. So yeah, I hope के और वो बड़ी छोटी सी चीज़ थी वो लाइटों वाली. लेकिन वो और 10 दिन के बाद everyone takes it for granted and then they start seeing other चीज़ें कि यार वो फलानी चीज़ अभी तक ये इस तरह के वाले. So अब उससे हुआ ये था कि at the time like जो आपकी employee satisfaction है ये भी तो एक चीज़ होती है ना, right? So there were a lot of things that like this thing contributed towards that कि okay then the employees could start seeing कि hey कुछ change आ रहा है, something's happening, something different. अगर company grow कर रही है तो अब हमारी environment भी improve हो रही है. So employees के लिए that's an incentive, they're going to work even better ideally. ठीक है, तो yeah these things they happen. But yeah end पे आपका होता वही है कि यार जो मेरे CEO हैं like मैं अपने हर इंटरव्यू के अंदर I guess when you're in senior position में ये होता है कि वो मेरा इंटरव्यू लेते हैं मैं उनका इंटरव्यू लेता हूँ. ठीक है. एंड आई रिमेंबर उमर से जब आर्विलॉन में मैं कर रहा था इंटरव्यू तो आई आस्क्ड देम कि व्हाट इज योर सोर्स ऑफ फंडिंग, हाउ मच फंड्स डू यू एक्चुअली हैव. आपको पता है ना कि 10,000 रुपये में मार्केटिंग नहीं होती. ठीक है, बिकॉज दैट हैपेंस लाइक मार्केटर्स जाते हैं और वो कहते हैं 10,000 रुपये में एड्स लगा दो. यार 10,000 रुपये में आपको क्या रिजल्ट आके दूंगा मैं, शायद चल जाए तुक्का लग जाए लेकिन कितना का आ जाएगा, इतना तो आपका एक्सपेरिमेंट. सो दे वर लाइक नहीं. सो व्हेन आई गॉट तो मुझे अंदाजा हो गया कि अच्छा यानी कि ये 2-3 साल they can sustain this thing, so it's good. ये चीज़ जब ये यहाँ पे आया I asked them the same things कि okay ये चीज़ें आपको पता है ना आप ठीक नहीं करेंगे, they are not linked to your the stuff that you're talking about but they do indirectly affect. क्या आपको ये चीज़ understanding है? They were open to it. That is why I was like okay मैं इनके साथ चल सकता हूँ. ठीक है, they will let me be the entrepreneur that I want to be. ठीक है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ इतनी अच्छी understanding है कि like the two owners and I'm the third one and it's like उनका बड़ापन है कि they give me 1/3 of the vote. ठीक है, जब भी कोई डिस्कशंस होती है तो वही होता है कि मैं एंड आई एम लाइक यार यू गाइस आर द ओनर्स एंड आई एम योर एम्प्लॉई बट दे आर लाइक नहीं यार लाइक अगर 2 का वोट हो गया उसमें से एक तुम्हारा है तो चलो वन ऑफ द ओनर्स इज लाइक आई विल बैक ऑफ. आई एम लाइक वाओ दैट इज मैसिव. अब
आई नो हर किसी को इस तरह के नहीं मिलते लोग, एंड आई एम एक्सट्रीमली लकी कि देयर इज दैट. एंड या जब मैं इधर आया भी था तो अ लॉट ऑफ एम्प्लॉइज जब मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ तो मुझे अंदाजा हुआ कि दे डोंट नो दैट अबाउट द ओनर्स ऑफ द कंपनी. एंड अक्सर उनमें से उनके कई आइडियाज इस तरह के भी होते थे कि यार ये तो हर वक्त अपने कैबिन्स में बैठे रहते हैं और ये दे डोंट केयर अबाउट द एम्प्लॉइज एंड व्हाट नॉट. वेयर एज आई वाज लाइक कि ऑल दे टॉक अबाउट आर द एम्प्लॉइज and the company and how do we improve things. So I was like, why is there this disconnect? तो फिर मैंने उनको कहा कि यार now you have to show. आपके एम्प्लॉइज ने मेहनत करके दिखा दी, उन्होंने इस कंपनी को एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंचा दी है कि now you are scaling up. So now you need to demonstrate कि यार ये चीज़ें हैं. तो और वो फिर वही हुआ कि मैंने लाइक जब सिर्फ ट्रांसपेरेंसी हुई दोनों साइडों से थिंग्स स्टार्टेड कमिंग गुड. एंड उनको कोई पता नहीं था, इतने ब्रिलियंट एम्प्लॉइज थे वो नजर आना शुरू हो गए. ठीक है, जो दे सम ऑफ देम वर ऑन द वर्ज ऑफ रिजाइनिंग. ठीक है, एंड एट द सेम टाइम जो वो मुझे लेके आए थे कि हमने लीडर्स बनाने हैं, एंड आई वाज लाइक आपके लीडर्स बैठे हुए हैं कुछ. ठीक है, या अगर उनको थोड़ा सा और ग्रूम किया जा सकता है. तो जब वो सारा हुआ और जब उन्होंने देखा कि साल के अंदर वी आर वे मोर रोबस्ट, अब तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि एक एम्प्लॉय छोड़ के चला गया तो वो काम कौन करेगा, तो वो ट्रस्ट और ज़्यादा बिल्ड होना शुरू हो गया. तो फिर डिज़ाइनर्स के साथ भी जब आप इंटरेक्ट करते हैं विद द डिज़ाइन टीम्स, तो यू काइंड ऑफ हैव टू शो इट टू देम कि यार like everyone wants to create a masterpiece, but who's paying the bills and who's paying that? So you kind of owe it to them कि hey, we are going to let you experiment, but इस कैंपेन के लिए ये ऑब्जेक्टिव है, we need to run this thing, we need to do this thing, while also a good company will also then allocate some budget to experimental stuff and what not. And as a creative मैं लोगों को like जो जिन creative से मैं इंटरेक्शन होता है उनको मैं यही कहता हूँ कि guys you have to find a way जैसे आपका वो जो creative thirst है वो भी satisfy हो while also meeting the requirements of the place you're working. Because अगर आपका अपना business भी होगा ना तो आपको यही फेस करना पड़ेगा, right? Like you will have to see कि I've created beautiful furniture or very contemporary furniture, but if there's no demand for it, तो फिर ये business तो ना हुआ, फिर ये passion project हुआ, right? So if it's a passion project, well and good. और कईयों का होता है, it's fine, ठीक है. But then yeah, sometimes you find an audience for that very unique kind of sculptures or furniture or whatnot, and you go for it. So yeah, maybe it has to be sustainable. अगर आप वही अगर वो डिज़ाइनर या कोई भी टीम उस तरह की कोई चीज़ इनोवेटिव या अपने हिसाब से क्रिएटिव करना भी चाह रही है, it has to be sustainable in the context of that business. And then what you were just saying, I think yes, working with leaders is like a two-way street. Yeah. Okay, you get their vision as well, but then you also have to communicate a lot of things or educate them on a lot of things. Which makes brings me to another point which I sometimes wonder कि ज़ियाद क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो CEOs होते हैं या जो executives होते हैं, maybe they are also in a very vulnerable position कि it's not just the marketing head or the tech head या HR का head who's going up to them. It's everyone who's going up to them. Yeah. And that if it's a 1% executive level or 3% whatever, they maybe in a position के जहाँ पे उनके पास उस डोमेन की शायद नॉलेज ना भी हो, 5, 6, 7 डिपार्टमेंट्स जो भी हैं, everyone is coming up with not just challenges, with again different visions as well. They have to not just understand that, but respond to it in a way which looks like very leader like. So I do sometimes wonder it's very tough for them as well sitting on those chairs. Yeah, one of the things, like I think there is one pressure जो कि हम imagine भी नहीं कर सकते, and that pressure is कि मैंने salaries कैसे देनी है. Okay. ठीक है. Now, because like I said, I was very lucky कि शुरू से ही I've had exposure to those people, to the senior management, and I've seen their pressures and I've seen their veins popping, क्योंकि they are like कि यार अगले सीजन में क्या करना है. So we are all preparing कि ईद आ गई है, हम ईद की छुट्टियों की तैयारी कर रहे हैं, we're like अच्छा फलाने दिन सैलरी आ जाएगी, वो सारा कुछ करेंगे, but those guys are like कि सैलरी कैसे देनी है, राइट? या चलो जो थोड़ी कंपनीज इस्टेब्लिश हो जाती है उनको शायद 6 महीने की सैलरीज का प्रॉब्लम नहीं होगा, साल की नहीं होगा, बट देन दे हैव टू थिंक कि यार अगर मेरा 250 एम्प्लॉई है तो 12 महीने की मेरे पास सैलरी देने को है, मैंने अगले 12 महीने का सोचना है, बिकॉज ये 250 अगर 12 महीने में अगर इनमें से आधे हो गए तो ये तो दैट्स लाइक 125 पीपल हु लाइक जिनका घरों का मसला बन जाएगा. ठीक है. सो वो वाले प्रेशर्स जो है ना वो इमेजिन भी नहीं कर सकता कोई बंदा जब तक आप कंपनी के ओनर्स के साथ काम खुद ना करें या आप खुद कंपनी के ओनर ना हो. एंड अगेन आई विल कोट माय CEO. जब मैं कभी कभार उनसे बात करता हूँ ना, एक पॉइंट आया वेयर आई वाज लाइक कि
दिस इज योर रेवेन्यू, these are your margins, now is the time to invest. आप इतने % री इन्वेस्टमेंट में क्यों नहीं रख रहे? तो उसने मुझसे बड़ी फ्रैंक बात की. उसने कहा ज़ियाद, आई हैव PTSD क्योंकि अब से साल पहले भी वी वर नॉट इन अ पोजिशन जहाँ पे हम री इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच भी सकते थे. एंड ही सेड कि हम यही देख रहे होते थे कि अच्छा अब इस महीने तनख्वाह देनी, कहाँ से वक्ती तौर पर पैसे पकड़ूं, बिकॉज वहाँ पे तो पैसे फंस गए हैं या फिर वहाँ से पेमेंट्स नहीं आ रही. ठीक है. एंड जब उसने PTSD का लफ्ज़ बोला ना, तो आई वाज लाइक ओके, अब मुझे समझ आई है कि मैंने आपसे कैसे डील करना है. ठीक है. सो दैट इज व्हाई आई वुड ऑफन सी कि वो सुन रहे होते थे मेरी बातें, एंड आई वाज लाइक व्हाट इज नॉट गेटिंग थ्रू, बिकॉज उनको उस टाइम पे जब लोग लाइक वो बता रहे थे कि एक एम्प्लॉय के फादर आ गए थे, एंड ही वाज लाइक निकालो पैसे, सैलरी थोड़ी सी डिले हो गई, जो कि अक्सर छोटी कंपनीज में होती हैं. ठीक है. सो अब इमेजिन करें कि आप अपनी कंपनी खोल के बैठे हुए हैं और एक अंकल आए हैं एंड ही इज लाइक कि भाईजान तुम लोगों ने यहाँ पे क्या, तुम लोग तनख्वाह नहीं देते हो, ये वो वगैरह. आपको क्या पता कि क्या प्रेशर्स हैं, क्या पता उन्होंने देनी भी है तनख्वाह, उन्होंने बोनस भी देना हो, लेकिन फॉर सम रीजन कहीं पे कोई पेमेंट्स डिले हो गई, कोई कुछ बड़ा कुछ होता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और बाकी सारी चीज़ें. हमारा तो इंटरनेट चलना बंद हो जाता है तो हम तो टेंशन पड़ जाती है क्योंकि हमारे पैसे उसी से लिंक्ड है. ठीक है. सो या ऑल ऑफ दैट. सो इनके जो प्रेशर्स हैं दे आर जस्ट ह्यूज, राइट. तो फिर मैं मिडिल मैनेजमेंट को अक्सर ये बताता हूँ कि आपने अपने से जूनियर को भी मैनेज करना है और अपने से सीनियर को भी करना है. वी ऑल हैव आवर बॉसेस. माय बॉस हैज अ बॉस एज वेल. उसका बॉस कौन है? क्लाइंट्स हैं. ठीक है. अगर कोई बिल्कुल क्लाइंट जो है वो अगर फटने लगा है तो अल्टीमेटली द CEO इज लाइक मैं मीटिंग करता हूँ, वो सुनता है फिर उसकी और उसको तसल्लियाँ देता है. राइट ना, उसका एक किस्म का वो है ना बॉस. राइट. बिल्कुल सही है. ही इज आंसरेबल टू हिम. या सो और यही होता है. जब मैंने फिर मिडिल मैनेजमेंट इस कंपनी के अंदर भी ग्रो जब की है, तो मैंने एक लड़के को प्रमोट किया, उसको अगर कहा कि यार ओके नाउ दीस गाइस विल बी रिपोर्टिंग टू यू, तुमने इनसे आंसरेबल, दे आर आंसरेबल टू यू. अगर कोई गड़बड़ होती है, हैव अ मीटिंग विद देम, उनको देखो क्या एक्शंस लेने हैं, क्या करना है वगैरह. बट फॉर दैट देन आई हैड टू गो एंड आई हैड टू शो द रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज कि देखो मैं इससे ये सवाल कर रहा हूँ, अगर योर परफॉर्मेंस उसका सवाल इससे होगा. ठीक है. एंड आई हैड टू काइंड ऑफ शो दैट, बिकॉज मुझे पता था अभी उस वक्त उस ऑर्गेनाइजेशन में वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी. एंड दे लाइक कि इसने ये हमारे कॉलीग को बॉस क्यों बना दिया. देन दे सडनली रियलाइज कि ओ इसकी तो जिंदगी अजाब हो गई है. सो दे काइंड ऑफ गार्डेड कि ओ इफ वी आर नॉट a manager, the managers yet, so we also have some protection. ठीक है. तो we're not answerable directly to this guy. Yeah, and then they're also like यार अगर मैं ये चीज़ अगर इस तरह से नहीं करता तो ये जो मेरा बॉस है अब he will be answerable. तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा, वो एक दो मरतबा मुझे बचा लेगा, तीसरी मरतबा he will say कि यार look there's this guy, he's not performing, he's not improving, he's not growing. ठीक है. So वो प्रेशर्स जो मैनेजमेंट के होते हैं और फिर मैनेजमेंट से भी ज़्यादा फिर ओनर्स के होते हैं. तो अ गुड मैनेजर अंडरस्टैंड्स कि उसने अपने जूनियर्स को किस तरह मैनेज करना है और फिर उसने अपने बॉस को कैसे मैनेज करना है. सो आई हैव टू, जैसे मैं आपको बताया, जब उन्होंने PTSD का लफ्ज़ बोला तो आई अंडरस्टूड कि ओके अब मैंने इनके साथ कैसे डील करना है. सो आई वुड गो टू हिम विद प्लान्स, जो कि आप कह रहे हैं प्लान B, प्लान C के साथ, कि हे इफ समथिंग गोज रॉन्ग हम इस तरह से हैंडल कर लेंगे, बट वी फील लाइक यू शुड टेक दिस स्टेप. ठीक है. अगर कोई मसला हुआ वी विल हैंडल इट लाइक दिस. इस तरह उनका फिर PTSD उनका एड्रेस होता है. ठीक है. एंड आई एम ऑनेस्टली सो लकी कि वो मेरे साथ इतने ओपन भी हैं. ठीक है. दैट एक्चुअली अलाउज मी दैट थिंग. और आई नो कई लोग सुन रहे होंगे, वो कहेंगे यार अच्छा ये कौन से बॉस हैं, या ज़्यादा बड़ा लकी है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं. बट सारे अच्छे बॉसेस मिल गए ज़्याद को मिल गया, सारे अच्छे ज़्याद को मिल गए. लेकिन आई थिंक you must realize this and आपके listeners भी करेंगे, when you're constantly thinking a certain way ना, तो you attract that energy as well. Definitely. You attract those people as well. Definitely. जब मैं उन मीटिंग्स में जाता था, क्योंकि मैं खुद एक certain तरीके से सोचता था, तो अगर इत्तेफाक से अगर वो भी उस तरह सोचता है तो we would connect. ऐसे ही. अगर मैं उस तरह करता ही ना, if I was too skeptical about it, या अगर मैं कहता ओ यार ऐसे नहीं होता, बस नौकरी करो, ठीक है 9 to 5 करो और घर जाओ, ठीक है, तो मुझे जॉब भी उस तरह की मिलनी थी. ऐसे ही है. और शायद मुझे वक्ती तौर पर उस तरह की जॉब करना पड़ जाए, बट इफ आई डोंट गिव अप तो कहीं ना कहीं तो आई विल हैव एन इंटरेक्शन ना. ऐसे ही. ठीक है. तो वहाँ पे यस, सो लक प्लेस अ पार्ट, बट देन यू हैव टू बी रेडी कि जब आपको लकीली कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो यू हैव दैट माइंडसेट एंड यू हैव दोज थिंग्स दैट यू कैन एक्सप्लेन दैट विजन, a lot of that. And if I look at, again from another side, for example, in your career, the way you were taking ownership and leadership, it was, again, your mindset.
कि नो वन आस्क यू टू बी लाइक कि तुम वो सप्लाई चेन को भी देखो, तुम इसके लाइट्स भी देखो, या तुम लोग जो आ रहे हैं एम्प्लॉयज आ रहे हैं उनको भी देखो. You were with your thoughts, with your mindset, as you're saying, if you think a certain way, then you attract that sort of energy. Yeah. But then if you think a certain way, then you also attract those opportunities as well. Yeah, absolutely. If you and खुद क्योंकि अपनी कंपनी चलाई हुई थी, सही, तो कहने को मैं चीफ एडिटर था, एडिटर इन चीफ था ऑफ द मैगजीन, बट प्रिंटिंग को भी मैंने देखना है यार. मेरी एडिटिंग का क्या फ़ायदा है अगर मैगजीन प्रिंट ही नहीं हो रहा या उसका क्वालिटी ठीक नहीं है पेपर की. फिर क्या होता था, दोपहर को 12 बजे मेरा एग्ज़ाम होता था LSE में, और सुबह के 9 बजे मैं प्रिंटिंग प्रेस पे होता था, अपनी किताबें लेके आता था, साथ साथ देख रहा होता था कि क्वालिटी किस तरह की है, उसको दोबारा करना है, उसके कलर सही हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है. और फिर 11:30 बजे निकला प्रिंटिंग प्रेस से, 12 बजे उधर पहुंच के एग्जाम दिया, 2 बजे बैक टू प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है. फिर शाम को 6 बजे तक उधर, और फिर 6 बजे के बाद जाके घर पे अगले एग्जाम की तैयारी करनी, ठीक है. जब मैंने ये खुद देख लिया ना एज द ओनर ऑफ अ बिजनेस, तो व्हेन आई वुड टॉक टू द CEOs हु लेटर एम्प्लॉयड मी, तो आई वाज लाइक आई नो व्हाट योर प्रेशर इज और व्हाट द थिंग दैट यू आर वरिंग अबाउट. तो इस वजह से फिर मुझे अब नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज कि जो हमारी मिडिल मैनेजमेंट है, आई समटाइम्स कॉल देम टू माई ऑफिस एंड आई एक्सप्लेन देम टू. अभी एक रिसेंटली हुआ है क्योंकि डॉलर्स बीच में वो 307 पे चला गया था, ठीक है. तो देवर लाइक कि भाई आप लोग सैलरीज क्यों नहीं बढ़ा रहे. अब ये बनता है. अच्छा, पहली बात हम लोगों ने सैलरीज बढ़ाई हैं, लेकिन वो उनको फील नहीं होती, वो कहते हैं तो महंगाई होगी, ठीक है. लेकिन और फिर ऑब्वियसली और पर्क्स होते हैं ना साइड पे, जो आपको और भी तो मिली हैं चीज़ें. आपकी जॉब सिक्योरिटी हो गई है. पहले हम 3 महीने बाद जो है आपको शायद हमें खुदाफिज कहना पड़ता, अब हमें पता है हम 6 महीने तक आपको कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है. तो क्या होता है ना, उतनी देर में और अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं. सो यू बिल्ड. अब ये चीज़ें मैं बुला के जो मिडिल मैनेजमेंट है ना, उनको खुद ब्रीफ करता हूँ कि हे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि डॉलर्स जो है वो ट्रांसलेट किस तरह होते हैं. इधर से डॉलर सस्ता हो रहा है, उससे ज़्यादा टैक्सेस इंक्रीज हो रहे हैं. एक चीज़, पहले मुझे अगर $1000 का इक्विपमेंट था, वो अब टैक्सेस की वजह से मुझे 1100 का इक्विपमेंट पड़ रहा है, ठीक है. तो डोंट जस्ट लुक एट द रुपी वैल्यू, ऑल्सो सी के द मैक्रो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट जो है वो करती है. अब वो लड़का अब से साल पहले मैनेजर नहीं था, लेकिन अब वो मैनेजर है. नाउ ही इज गेटिंग एक्सेस टू द जनरल मैनेजर हु हैज दिस नॉलेज कि यार दीज आर द प्रेशर्स, ठीक है. सो मैं अक्सर वो उनको कहता हूँ, जब उनकी ट्रेनिंग होती है जूनियर्स की, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि थिंक लाइक अ CEO, ठीक है. वो एम्प्लॉइज जो एज बिजनेस ओनर्स सोचने की सलाहियत डेवलप कर लेते हैं ना, दे आर एबल टू कनेक्ट बेटर विद द मैनेजमेंट. फिर मैनेजमेंट भी उनको ज़्यादा वैल्यू देती है. ठीक है. आप सोचो कि अच्छा यार मेरा काम है, मैं कंटेंट राइटर हूँ, बट नाउ हु इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम थिंकिंग कि कंटेंट राइटिंग के कितने पैसे ले लेते होंगे, अच्छा ये और कहाँ इनका खर्चा लग रहा है, ठीक है. नहीं सोचते. मैंने आई हैव सीन दीज किड्स कमिंग इन एंड दे जस्ट नॉट थिंकिंग, एंड आई एम लाइक हु इज स्टॉपिंग यू, ठीक है. सोचो. So apt, because recently I was also discussing with a friend कि ये जो एम्प्लॉई माइंडसेट है, इससे निकल के अगर आप लीडरशिप माइंडसेट में खुद नहीं आएंगे, सो देन यू वुड नॉट राइज. यू कैन नॉट कंप्लेन अबाउट द कंपनी और द सिस्टम और द एनवायरनमेंट और व्हाटएवर स्ट्रक्चर यू आर इन, कि इफ यू योरसेल्फ डू नॉट हैव दैट सॉर्ट ऑफ आउटलुक और माइंडसेट कि अच्छा मैंने अगर ग्रो करना है, तो देन देयर आर द थिंग्स आई नीड टू लुक एट. क्योंकि मैं तो आई एम वेरी सिंपैथेटिक टू ऑल द एम्प्लॉइज. मैं खुद भी एम्प्लॉई हूँ, ठीक है, सैलरीड हूँ. बट मेरे CEO ने एक मरतबा कह दिया था मुझे कि ज़्यादा, मैं उनकी बात कर रहा था कि ऑन जॉब ट्रेनिंग इनकी ये करें, इनकी ये लीडरशिप स्किल्स डेवलप करते हैं, इनकी वर्कशॉप्स करवाते हैं वगैरह. बट तंग आके मुझे कहता है यार ये सारे कुछ हम नहीं करवाना, ये खुद नहीं कुछ करते. एंड आई डिडंट हैव एन आंसर बिकॉज आई न्यू कि मैं उनके सामने सीनियर मैनेजमेंट के सामने उनको डिफेंड कर रहा हूँ अब. और सीनियर मैनेजमेंट को ये नहीं पता था कि मैं उनकी क्या बेइज्जती करके आया हूँ कि आई वाज लाइक, अब दिस गाइज दे केम टू मी के मैं सीनियर हूँ जी. अच्छा कैसे सीनियर आप? मैं जो मुझे 5 साल या 8 साल हो गए हैं वीडियो एडिटिंग का, मैं तो गुरु बन गया हूँ, मेरे ये मैंने कहा ओके लाइक आप, मैं साउंड के साथ बहुत डील कर लेता हूँ, मैं एनिमेशंस कर लेता हूँ, एंड वाकई वो कर लेते हैं, नो डाउट. सो आई वाज लाइक ओके, ये अगर आप मुझसे अपनी जॉब के पहले 3 सालों में कहते, मैं कह लेता कि हाँ, लेकिन अब आपको 8 साल एक्सपीरियंस हो गया एंड दैट्स इट. आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कौन सी किताब पढ़ी है? आपने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर क्या किया है? ठीक है. एंड यू आर टेलिंग मी कि आप सीनियर नहीं हुए, आप सीनियर हुए 3 साल तक, उसके बाद आप फ्लैट हो गए हैं, अब सिर्फ टाइम गुजरा है और आपको पता ही नहीं है. एंड उनकी शक्लें देखने वाली होती हैं, दे गेट सो सरप्राइज कि अच्छा हमने ये भी करना था. एंड मैं अपने CEOs को ये कह रहा होता हूँ कि इनसे कभी किसी ने ये बात ही नहीं की तो इनको क्या पता होगा. वो मुझे ये कह रहे होते कि हर बात हम नहीं करनी है. सो आई एम समवेयर इन द मिडल वेयर आई एम लाइक कि यस मैं बात तो करूँ ना जाके, और आधे लोग वहीं पे हो जाते हैं. एंड
ह्यूमन साइकी इज लाइक दैट. व्हेन वी गॉट इनटू द न्यू ऑफिस, तो वहाँ पे सफाई का जो है ना, वो मुझे इट वाजंट टू माय सेटिस्फैक्शन. अब मुझे था कि यार नए ऑफिस वगैरह में आए हैं, आई वांटेड इट टू बी टिप टॉप. तो मैंने क्या किया कि होती थी बातचीत वगैरह कि यार ये लोग इधर सामान छोड़ के चले जाते हैं, एम्प्लॉइज को खुद करना चाहिए, अपने कप्स वगैरह खुद उठाएं, ठीक है, विच इज ऑल गुड. बट आई वाज लाइक, हाउ डू आई एक्सप्लेन दैट टू लेट्स से 60-70 एम्प्लॉइज, राइट? सो मुझे एक एम्प्लॉई ने कहा कि मैंने उससे बुला के मैंने वैसे ही हार्ट टू हार्ट की टू जस्ट काइंड ऑफ गेट कि यार व्हाट इज गोइंग ऑन, तुम लोगों को लाइक वहाँ पे क्या हो रहा है, आपके कॉलीग्स वगैरह हैं, व्हाट्स द काइंड ऑफ लाइक क्या माइंडसेट. उसमें से एक ने मुझे कहा कि हम है ना हम बात करेंगे. मैंने कहा यार तुम लोग अनऑफिशियली वगैरह थोड़ा सा करना कि है यार चीज़ें वगैरह उठा लें. कहता आप सिर्फ एक काम कर दें, आप ना वॉल्स पे कुछ नोटिस तो लगाएं ना, ठीक है, जिस तरह फायर एग्जिट का लगा होता है, ठीक है, उस तरह आप किचन में लगाएं एक कि प्लीज़ अपने आप यूटेंसिल्स वगैरह क्लीन करें. वॉशरूम के अंदर एक लगा लें, ठीक है, क्योंकि लोगों के लाइक लेट्स से अब क्लीनिंग होती है, लेकिन जो आपका क्लीनिंग स्टाफ है हर वक्त तो नहीं होता. अगर मैं वॉशरूम में हूँ और मैं देख रहा हूँ कि अच्छा मेरे जूतों के साथ द सॉइल इज देयर, आई कैन क्लीन इट, राइट? बट कॉन्सेप्ट ही नहीं है लोगों को. एंड मैं आई वाज अ GM एंड आई शोड इट टू देम, ठीक है. जो एडमिन वाला बंदा था उसको मैंने कहा कि यार वॉशरूम में घंटा गुजर गया. ही वाज लाइक सर मैंने बुलाया लड़का. मैंने कहता आपको शायद याद होगा मैं नेक्स्ट पेज में आरवेलॉन में भी करता था ये. वो जब नया स्वीपर आता था मैं कहता इधर लाओ, क्योंकि कोरोना में हुई थी ट्रेनिंग घर साफ करने की. तो मैं उनको कहता था कि यार वो जो मैं कहता था कि यार जब पचारा मारना है तो आगे की तरफ जाना है और जब आप जैसे करें तो पीछे की तरफ लेके आना है, इधर उठा के रखना है. एंड यू सीन मी शोइंग इट टू देम हाउ टू डू इट, ठीक है. एंड दैट इज द थिंग दैट आई वांट फ्रॉम दीज पीपल. आई एम लाइक व्हाई आर यू सिटिंग ऑन योर बिहाइंड्स, ठीक है, गेट अप, डू इट. और वो वही हुआ, जो ही वो नोटिस लगे, यकीन करें वासिफ, विद इन वीक्स सारे एम्प्लॉयज खुद ही कॉन्शियस हो गए, व्हेन जस्ट बिकॉज दे रेड इट. सो अब मेरे एम्प्लॉयर की बात भी ठीक है कि यार ये हमने सिखानी है इनको चीजें, लेकिन साथ वो भी ठीक है कि जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ नज देन ऑल्सो ब्रिंग्स आउट वही सेम एम्प्लॉयज, उन्हीं के अंदर वो सेंस डेवलप हो गया. और अब क्योंकि वो जगह साफ सुथरी, अब कोई करता भी नहीं है, ऐसे वो डेवलप हो गया. I sort of think I'm slightly leaning towards the owner, because I do feel कि वो अगेन उस बेचारे के पास वैसे ही इतने मसले हैं कि उसने इकोनॉमी को देखना है, उसने पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को देखना है, उसने टीम बिल्डिंग, उसने रेवेन्यू को देखना है. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना तो हमें सिंपैथी होना शुरू होती है उनके साथ, बेचारों के साथ. कि इसी तरह एक सिमिलर ना, I was consulting a company, और उनकी जो वो थी हेड थी, she was discussing with me. तो एक सिमिलर इस तरह का वो था कि people again really amazing company, बट वहाँ पर भी कुछ एक छोटा सा इसी किस्म का मसला कि लाइक पीपल वर तो वो चीज़ें शाम को जो उनके डेस्क पे पड़ी होती टिश्यूज़ या प्लेट्स वगैरह वो छोड़ के चले जाते, देन वो जो भी ऑफिस बॉय होता है वो आके उठा के लेके जाता है और उस तरह की वो चीज़ें वो करता है. एंड देन यू थिंक लाइक एक पूरा बंदा काम के लिए हमने लगाया हुआ है पूरे ऑफिस में, मतलब उनके 100-200 एम्प्लॉयज़ हैं और वो बेचारा एक बंदा, उसका ये काम है कि शाम को उसमें जाके पूरे जितने भी 6-7 ऑफिस हैं उसमें वो चीज़ें हैं. हाउ काउंटर प्रोडक्टिव दैट इज़. एंड अगेन शायद यही थोड़ा सा मैं शायद इस सेंस में भी लीन कर रहा हूँ एम्प्लॉयज़ की तरफ कि वो ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के वो जो बाकी प्रॉमिस हैं आपके साथ, आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट देना है, आपको एक आपकी सैलरी टाइम पर देनी है, बट ये जो आपकी बेसिक ग्रूमिंग है, ये जो सॉरी से तमीज़ तहजीब है, ये तो शायद हर इंसान को खुद लेकर आनी चाहिए. एटलीस्ट रियलाइजेशन तो ना कि इफ़ यू आर टेलिंग, मैं अंग्रेजी में नहीं कहता, शायद इंटरनेशनल ऑडियंसेस ना समझ जाए कि अगर आप इतने बड़े एक इंसान 25, 26, 28 साल के हैं आप, और अगर आपको ये समझाना पड़ रहा है कि बर्तन कैसे उठाने हैं और टिशू क्यों फेंकना है और जूते कहाँ पर नहीं उतारने, ऑफिस के अंदर आपको किसी को ये समझाना है कि जूते नहीं उतारने, तो उस बंदे को ना शायद 10 साल पीछे जाके ना या कोई 15 साल पीछे जाके मिलते हैं बहुत ज़्यादा. वो शायद वासिफ लाइक मैं काफ़ी मम्मी डैडी हूँ, राइट, मैं कभी हॉस्टल में नहीं रहा, मैं घर में सबसे छोटा बच्चा हूँ, ठीक है. तो जब मैं ऑफिस में खड़े होके ये अक्सर लोगों से बात करता हूँ, वो कहते हैं कि भाई हम तो अपना पूरा घर चला रहे हैं, हमारा तो ये है, हमारा वो है. एंड आई गो लाइक कि और तुम्हें ये नहीं पता कि बर्तन कैसे उठाने दे ऑल जस्ट लाइक आई लाइक यार लुक आई हैव हैड ऑल द प्रिविलेजेस, लेकिन तुम जाके अपना वर्क स्टेशन देखो और मेरा वर्क स्टेशन देखो, सही है, ठीक है, जो मैं अपने ऑफिस को भी तक वर्क स्टेशन ही कहता हूँ, ठीक है. सो आई एम लाइक व्हाई, लाइक तुमने देखा है कि कभी एंड यू सीन मी क्लीनिंग माय ओन थिंग्स, लाइक ऑफिस में मैं हमारा ऑफिस अब डिफरेंट फ्लोर पे है, तो कभी कभी मीटिंग्स की वजह से हमें ऑफिस बॉय को यूज़ करना पड़ता है, बट व्हेन आई एम फ्री मैं अपना खुद चाय का कप उठाता हूँ, जाके खुद धो लेता हूँ, ठीक है. बट इट इज़ सो हार्ड टू जस्ट काइंड ऑफ एक्सप्लेन दैट टू पीपल. हमने वो एडमिन हेड रखे, ही रेजिस्टेड कि भाई जो ऑफिस बॉय है वो सबको 6 बजे चाय देगा. मैंने कहा भाई क्यों देगा, मैंने वो एक मरतबा चीज़ ख़त्म करवाई, 3 महीने बाद उसने दोबारा शुरू करवा दी. एंड लाइक आई एम द जनरल मैनेजर एंड आई एम हैविंग ट्रबल जस्ट कि यार वो टी स्टेशन है, उधर जाके सारी अपनी चाय खुद बनाएं.
अगर मैं एम्प्लॉइज को कन्विंस भी कर लूँ, जो कि बाय द वे वो हो भी जाएंगे, आपके अपनी चाय बना लेंगे, एडमिन जस्ट द कल्चर इज देयर, राइट? दे आर लाइक कि भाई वो ये इनका तो ऑफिस बॉय तो काम ही है। मैंने कहा नहीं, ऑफिस बॉय का काम ये नहीं है, ये इधर ये काम है, ठीक है। एंड हमने वो तो ये चीज़ें काफ़ी जो है ना ज़रूरी हो जाती हैं। ऐसे ही। एंड इफ आई ट्राई टू फ्रेम इट कि ये हम ये क्यों बात कर रहे हैं, ये बहुत माइन्यूट सी बात हम क्यों कर रहे हैं, हम अपने कल्चर की, अपने लोगों की बुराई नहीं कर रहे कि वो ना अहल है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखें, अगर वो एक ऑर्गेनाइजेशन अपना टाइम, अपने रिसोर्सेज, वही जो प्रिंट आउट लगाना ना उसने, अगर 20 जगह पे या 30 जगह पे, वो प्रिंट आउट भी कहीं और लग सकता है। और वो जो उस प्रिंट आउट का जो बैक एंड पे जो सारा वर्किंग है ना, कि हमने अपने वर्क फोर्स को किस तरीके से एजुकेट करना है, और ये बहुत बेसिक बातें हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन दूसरी डायरेक्शन में लगा सकती है जहाँ पे उसकी ग्रोथ है, बिल्कुल, जहाँ पे उसकी वो वाली क्या कहते हैं, एक्चुअली उसने कंपेटिटर्स के साथ compete करना है, एक्चुअली उसने मार्केट में जाके अपना लॉट ऑफ दीज फैक्टर्स लाइक HR डिपार्टमेंट मैंने बिल्ड किया, एंड मैं HR से कहता था कि भाई ये फलाना नोटिस निकाल दें, या वो जैसे वो फौजियों की तरह नोटिस लगा देते, ये नहीं होगा तो आपको ये फाइन पड़ेगा, ये वो वगैरह। वो मैं उनको हमेशा कहता था कि बिफोर पब्लिशिंग और सेंडिंग आउट एनी मेमो, मेक श्योर यू रन इट बाय मी, बिकॉज मुझे पता था उन्होंने यही करना है। आई डोंट नो, आई गेस बचपन से स्कूल से ही हमारा इस तरह का वो होता है कि वो टीचर जो है वो उस तरह ही होता है, सख्त होता है, क्या होता है। फिर मैं वो HR के मेमोज बैठ के उनको मेलो करता था, उनकी टोन को, नर्चरिंग टोन। मैं कहता था प्लीज रिमेंबर you are on their side, you're not, you're on the side of the employees। फिर उनको करना, उसकी वो करना, जो ये फाइन फून वगैरह तो मैं निकलवाता, सबसे पहले वो निकलवाता हूँ, ये जो वार्निंग्स है ना ये ख़त्म करो, ठीक है। आई नो अनफॉर्चुनेटली कभी कभी वो करना पड़ती है इम्प्लीमेंट, ठीक है, लेकिन ऑफन टाइम्स इस तरह, और ऐसा भी हुआ है कि मैंने फाइन्स ख़त्म करवाए। मैं ऑफिस गया हूँ एक दिन, और CEO ने जाके कुछ चीज़ देखी है और उसने कहा कि सबको फ़ाइन पड़ेंगे। फिर और CEO तपा बैठा होता है, एंड आई गो लाइक के ओके फाइन है, मैं कहता हूँ चलो ठीक है होने दो, ठीक है। बट विद इन 1 or 2 वीक्स मैं उनसे फिर मीटिंग करता हूँ, मैं कहता हूँ सर ये फ़ाइन हटाएं, ठीक है, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म वी डोंट वांट टू बी दैट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू काइंड ऑफ वर्क विद, क्या अपने एम्प्लॉइज़ का भी ख्याल रखना है, वो भी, क्योंकि अल्टीमेटली यही होता है, एम्प्लॉइज़ दे स्टार्ट फीलिंग सफोकेटेड। कि बीच में एक ये भी आया था कि उन्होंने अगर लेट्स से स्मोकिंग ब्रेक के लिए जाना है, तो वो ये फलानी जगह पे ये करके जाएंगे, एंड आई एम लाइक यार वो 10 मिनट के लिए जा रहे हैं, क्यों बता के जाएं, डोंट कीप एन आई ऑन देम लाइक दैट, ठीक है। हाँ, वो खुद ही पता लग जाएगा अगर वो बहुत ज़्यादा ब्रेक्स ले रहे हैं, और होता है जो ज़्यादा लेते हैं उनको पता लग जाता है, यू डोंट नीड टू नेसेसरली हैव लाइक अ पुलिसमैन स्टैंडिंग ऑल द टाइम। ऐसे ही है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके, सो ज़ियाद, बाय द क्लैरिटी ऑफ योर वॉइस, मे बी इफ पीपल हैवंट रियलाइज्ड, you've worked as an RJ as well. I have. So how did that go, and how did you end up being an RJ? Wow. So sorry, it's a really different segment. So हुआ ये कि I had resigned from Next Bridge, ठीक है, और वो वाला साल था जो मैंने मेंशन किया था जिसमें I was experimenting with some of my own things, जिसमें हमने वो कैटल फार्मिंग वाला भी ट्राई किया, राइट। तो उस दौरान इट वाज लाइक अच्छा क्या सीन है, क्योंकि मैं डिबेट्स करता था, किसी ज़माने में डिबेट्स कोचिंग वगैरह भी करता रहा हूँ, दैट वाज आल्सो गुड मनी ऑन द साइड, ठीक है, आपका फ्यूल का निकल रहा है सारा कुछ। तो उसी दौरान माय ब्रदर इन लॉ बेसिकली ही न्यू समवन एंड ही सेड के ज़ियाद भाई वहाँ पे ना इस तरह है, तो दे आर लुकिंग फॉर RJs, तो आप क्यों नहीं ट्राई करते। तो मैंने कहा यार मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। नहीं वो कोई नहीं, उन्होंने मुझे भी ऑफर किया। अच्छा ठीक है। सो आई मेट द गाय एंड बिकॉज आई हैड पब्लिक स्पीकिंग एक्सपीरियंस, तो आई न्यू के डिबेट लाइक मैं कर सकता हूँ। तो आई मेट द गाइज एंड उन्होंने मेरा थोड़ा सा ट्रायल वगैरह लिया, थोड़ा सा ऑब्वियसली आपको उनको सिखाना पड़ता है आपको कि जिस तरह मैं भी बोल रहा हूँ इस तरह नहीं, बिकॉज एज एन RJ यू हैव टू बी लाइक गुड मॉर्निंग वेलकम, आपको एनर्जी एक देनी है, ठीक है। और जब व्हेन आई गॉट इट द सेकंड ट्राई आई वुड डू दैट, सो उन्होंने कहा कि भाई आप तो आ जाएं। सो दे गिव मी द मोस्ट डिफिकल्ट शिफ्ट व्हिच वाज लाइक सुबह 8 बजे वाली, जब कोई नहीं आता था, ठीक है, मॉर्निंग शो। ओके, स्टार्ट हुआ हफ्ते में 3 मरतबा से, ठीक है, एक वीकेंड का शो था और 2 जो है वीकडेज के थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा इस तरह से स्टार्ट करें, इट वाज लाइक वही था लाइक फ्यूल मनी, राइट, ठीक है, बट मोर देन द मनी आई वाज लाइक कि यार where else will I get a chance to kind of get in there, right, and learn के साउंड इक्विपमेंट क्या होता है, ठीक है, किस तरह की चीज़ें होती हैं। जब भी हम बाहर बैठ के बात करते हैं बैकग्राउंड नॉइज इस तरह रिमूवल से उस तरह, ये तो मैंने बात ही नहीं करनी थी अगर मैं कभी उधर खुद ना गया होता, खुद ना देखा होता कि ऑडियो किस तरह एडजस्ट होती है, व्हाट नॉट। सो मोर इट वाज मोस्टली इट वाज दैट, एंड देन यस आई यूज्ड टू गेट टू इंटरव्यू अ लॉट ऑफ पीपल in the tech space, and that was just like excellent, right? I used to meet those guys. Ek cheez, you need to remember, if you get the option to, every one of us is a book, ठीक है। मैं आपसे जब इंटरेक्शन करता हूँ, एंड वी हैड प्लेंटी ऑफ फिलोसॉफिकल कन्वर्सेशंस जब हम पहले भी इकट्ठे काम करते थे। अभी हम बाहर बात कर रहे थे उर्दू के बारे में, ठीक है, और उर्दू के स्टेट। तो
इट्स लाइक यार व्हाट कैन आई गेट आउट ऑफ दिस गाय. मैं लाइक मैं तो यही करता हूँ. जब मैं फर्स्ट जॉब में गया, ठीक है, उधर भी आई गॉट एक्सेस टू द CEO. मैंने कहा यार मैं इनको ड्रेन करूँ, मैं निचोड़ूँ इनका दिमाग. मुझे नेक्स्ट पिच के अंदर CEO का लाइक मेरे से डबल उनकी एज थी. और कैन यू इमेजिन मुझे कोई यूनिवर्सिटी वो चीज़ें नहीं सिखा सकती. बट देन आई वॉज दैट ईगर गाय. मैंने कहा यार उनको छोड़ना नहीं है, ठीक है. आई वुड गेट एवरीथिंग आउट ऑफ हिम एंड देन ही वुड एक्चुअली अप्रिशिएट दैट एंड ही वुड गिव मोर एंड मोर. ठीक है. फिर इसी तरह जब आर्विलॉन में गए, जहाँ पे भी अभी इधर हूँ, तो नाउ दीज गाइज आर क्लोज टू माई एज बट देयर एक्सपीरियंसेस आर सो डिफरेंट. जैसा आपको बता रहा था कि उनको PTSD था, मुझे कैसे पता लगना था इफ आई हैडंट इंटरैक्टेड विद देम, राइट. सो दिस लर्निंग एंड क्यूरियोसिटी वाली बात. सो जब वो RJ वाला भी हुआ तो आई वाज लाइक यार आई गेट एक्सेस टू सो मेनी पीपल नाउ. अब एक बंदा है दैट आई रियली एडमायर, नाउ आई कैन एक्चुअली इनवाइट हिम कि मैंने आपको इंटरव्यू करना है. ठीक है. ठीक है, ऑडियंस का बेनिफिट है, लेकिन मेरा बेनिफिट था यार. ठीक है. सो आई वाज लाइक या एंड देन यस आई हैव बेनिफिटेड सो मच फ्रॉम पीपल्स नॉलेज कि आई थिंक इट्स माय ड्यूटी कि जब मेरे सामने कोई आता है ना, सही है, तो मैं शुरू कर देता हूँ बताना सब कुछ कि ये भी होता है, ये भी होता है. जस्ट गिव एज मच नॉलेज एज पॉसिबल. क्योंकि हमें भी तो किसी न किसी टाइम पे दिया ना, अगर वो ना देते, वो पकड़ के बैठ जाते, इट वुड हैव बीन अ प्रॉब्लम. और अभी भी दिस इज वन ऑफ माय पेट पीव्स व्हेन आई सी ना कि ये बंदा जानबूझ के अगले को ट्रेन नहीं कर रहा. आई वाज लाइक यार आई सी यू, आई नो व्हाट यू आर डूइंग, स्टॉप इट. और फिर मैं अक्सर उनको कहता भी हूँ बातों बातों में कि दे कांट टेक योर प्लेस, आप और वैल्यूएबल हो जाएंगे. ऐसे ही है. ठीक है. आपको और भी चीज़ें मिल सकती हैं, आप और भी चीज़ें गेन कर सकते हैं. एंड आई कैन रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग. आई हैव बीन टॉकिंग टू people इस पॉडकास्ट के थ्रू एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी बड़ा अलग सा एक्सपीरियंस है, because when people tell you their stories, their ideas, their thoughts, sometimes like you're taken aback कि ओह अच्छा ये चीज़ तो ऐसे भी होती है. and that's the beauty of the podcast medium, right? और मैं भी recent convert हूँ, मेरे ख्याल से कुछ 6 महीने पहले मैंने सुनना शुरू किया. I was like this is the best thing ever. वो मैंने रेडियो सुनना ही छोड़ दिया. ठीक है. So इतने वो डिफरेंट पॉडकास्ट हैं, पाकिस्तानीज भी हैं, इंटरनेशनल भी हैं. एंड उस दिन द गाय ऑन शार्क टैंक, आई फॉरगेट हिज नेम. ठीक है. वो उसके एक पॉडकास्ट पे आया था और मैं ये सोच रहा था कि यार वो इतनी कैंडिड कॉन्वर्सेशन थी 2 घंटे की. मैंने कहा 2 घंटे मेरे साथ तो नहीं बैठना इस बंदे ने, लेकिन बिकॉज आई एम अ फ्लाई ऑन द वॉल, नाउ आई एम गेटिंग टू हियर व्हाट दिस गाय is gone through. ठीक है. Elon Musk की अगर फॉर एग्जांपल इमेजिन करें, Elon Musk किसी बंदे से 3 घंटे बात कर रहा है about his journey, about his childhood, about his business, about his future plans, and you get to be in the room. यार कोई हम जिंदगी में कभी इतना नॉलेज का एक्सेस नहीं था हमें जितना अब है. और ये पॉडकास्ट्स आर लाइक अ लाइफ चेंजर बिकॉज आई यूज्ड टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स. As life became faster and faster और टाइम कम होना शुरू हो गया, unfortunately, it's not an excuse, but unfortunately मुझे उतना मैं अभी eager नहीं हूँ. But I feel like listening to Elon Musk for 2 hours is like reading his book. कि अपनी किताब में अगर वो बताता कि मेरे ये एक्सपीरियंस है, ये वो वगैरह, सेम like there are so many people, there's a there's a guy Wasif, he's doing an amazing podcast. Oh yeah, recently ran into him again. ठीक है. So he was like यार इधर मैं कर रहा हूँ, चलो यार. I saw a really open opportunity to plug myself in. Absolutely. So I wanted to ask you this on camera कि जब हम साथ काम कर रहे थे, I think we had amazing time because you were also again very passionate and very driven. And I also, as a creative director, I was also very sort of maybe in my own passion. Yeah. But I guess कि वो जो हमारी बीच में कभी friction होती है, marketing managers की और creative directors की तो होती है. I think it should be like that. But I wanted to ask you how many times you wanted to punch me in the face. Half a time. Yeah. The reason for that was yes. You are a pacifist. अच्छा. And you're the kind of pacifist कि बंदे को दूर से आ जाता है कि यार ये बंदा लड़ाई वगैरह में बिलीव नहीं करता. सही. And you made it very clear. ठीक है. Very early on. Yes. मुझे इंटरेक्शन से हो गया था कि I was the hot-headed one. सही है. ठीक है. Equally passionate, but hot-headed मैं था. Yes. ठीक है. Yes. And I could respect that about you so much कि I was like कि यार मैं एक certain point से बाद अगर इसके साथ जाऊंगा तो he will shut off and he'll be like यार ज़्यादा calm down. सही. ठीक है. And then we will talk. सही. And that was true. And the reason I never like protested there was because I was like okay, that's an opportunity for me to improve. ठीक है. So yeah, like उसमें क्योंकि वही होता था. Yes. जो कि मैं I was kind of touching on that as well कि
I am all about design, right? I'm like really Yes. passionate. Yes. So when Yes. I'm talking to you, I'm like, look, man, I'm on your side. Yes. But Yes. the problem is Yes. कि sales भी चाहिए. Yes. And ठीक है. yes, definitely. या ये फलाना सीजन है, Yes, उसके लिए yes. मुझे एक सर्टेन तरह के डिजाइन चाहिए. Yes. I get it. Yes. ये लेम है या ये ओल्ड फैशनड है. Yes. बट हम लेट्स से अगर मैसेज को क्रिएट कर रहे हैं, केटर कर रहे हैं, सो मैंने ऑडियंस को भी आई हैव टू टेक देम इनटू अकाउंट. बिल्कुल अब मैं रेवोल्यूशन नहीं ला सकता. आई कांट ऐसे ही। अफोर्ड टू डू दैट टुडे. ऐसे ही है. ठीक है, बट मे बी इन द लॉन्ग रन आई कैन. बिल्कुल सही. सो आई लव योर डिजाइन्स एंड इफ इट्स अप टू मी आई वुड, ये जो मैं अनोइंग चीज़ें बीच में डलवाता हूँ कि यार ऐसे ही है. लोगो ये कर दें या वो फलाना ब्रांड एलिमेंट आ जाए, अगर लोगो ना हो तो हमारा हैशटैग डला हो. ठीक है, क्योंकि यू नो लाइक वी हैड टू डील विद दिस स्टफ कि पीपल वुड जस्ट टेक आवर डिजाइंस अगर उसके ऊपर ब्रांडिंग ना हो तो. बिल्कुल ऐसे ही. ठीक है, एंड वो अपने लगा देते, अब कौन जाके उनको पीछे उनको जाके रिपोर्ट करता रहे कि जी अपने पेज से उतारें या ये क्या करें. बिल्कुल सही. एंड देन इट वाज आल्सो लाइक कि समटाइम्स वी वर डूइंग टीजर्स, राइट? Yes. सो अगर उसके अंदर मेरी एक ऑडियंस है, इफ दे सी एन इमेज, that image to us makes sense because Yes. we know the context, but unless they see our brand colors, बिल्कुल सही. तो उनको नहीं समझ आएगी कि अच्छा ये क्या किससे रिलेटेड है, ये स्किन केयर से रिलेटेड है. ऐसे ही है. ठीक है, सो इफ देयर इज a beautiful model in a black and white picture, और अगर उसके साथ टेलेनॉर का एड लगा, अगर लोगो लगा होगा, तो सब कहेंगे कि शायद ये इनका ब्रांड एम्बेसडर बन गया. अगर उसके साथ स्किन केयर का लगा होगा तो कहेंगे अच्छा हमने इसकी स्किन पे फोकस करना है. तो वो एज मार्केटर्स वुड बी लाइक अच्छा यार इस मैसेजिंग को इस तरह करना है. लेकिन आई वुड लव टू, अब अगर हमारी ब्रांड उस पोजीशन पे पहुंच चुकी होती ना जहाँ पे हमें अपना बताने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही है. या हम अपना जो हमारा यूनिक शेड था एक जो कलर का, अगर मैं उसका एक डॉट लगा दूं दैट्स इनफ बिकॉज वी आर सो वेल, क्योंकि हमारी पोजीशनिंग वो है. सो एज अ मार्केटर आई एम लाइक अच्छा हमारी ब्रांड की पोजीशनिंग इस वक्त वो नहीं है, आई हैव टू मेक इट मोर ऑब्वियस. बट देन फ्रॉम अ क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू मुझे पता है कि इसने इतनी खूबसूरत चीज बनाई है कि जो ही ये लगाएगा ना इट्स गोना बिकम अ रन ऑफ द मिल डिजाइन. एंड आई एम लाइक यार इट इज सो लाइक इट्स अनफॉर्चुनेट, राइट? सो अब होता ही ये था कि वी हैड द सेम बॉस, एंड उसमें यही चीज होती थी कि यार सो I have to answer this, right? And for that I'm relying on you for this, and vice versa. कि जब वो होगा कि okay we want to launch a new product, उसके लिए we'd come to you and we'd be like hey we have nothing from scratch, Wasif please pitch us some ideas, right? And there I'm all ears, right? But then there I'm like okay my data shows जो मैंने experiment किए कि इस तरह की चीज goes, right? So now अब ये सीजन आ रहा है या ये कोई सेल का सीजन है 3 हफ्ते का, मुझे इसके लिए ये वाले इस तरह से चाहिए, right? अब इफ लेट्स से होता है हमारी डिसएग्रीमेंट होती है या वी डोंट कम टू दैट थिंग, वो चीज़ उस तरह से नहीं निकलती. एक क्रिएटिव आता है जिसमें आप अपना इनपुट भी देते हो, ठीक है. अब हो सकता है आपका इनपुट ठीक हो, ठीक है. व्हेन द एड गोज तो मुझे एक बहाना मिल जाएगा कि आई कैन पॉइंट अ फिंगर एट यू. व्हेन द सीईओ से सेल क्यों नहीं हुई, मैं कहूँगा मैंने तो जी क्रिएटिव से ये मांगा था, ठीक है. वेयर एज द क्रिएटिव probably did a good thing, ठीक है, कि यार डिजाइन या ठीक है. सो मुझे ये होता था कि जो मैं अक्सर हम बात करते थे कि यार प्लीज डोंट गिव मी द एक्सक्यूज टू पुट इट ऑन अनदर डिपार्टमेंट, क्योंकि मैंने बताया ना मैं सप्लाई चेन पे भी डाल सकता हूँ. वो कहेंगे जी क्यों नहीं हो रही सेल्स, मैं कहूँगा इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आपकी रीसेल्स कम हो गई हैं, बिकॉज जब वो हमें रीसेल के लिए कॉन्टैक्ट करते हैं प्रोडक्ट ही नहीं होता आगे, लो जी सप्लाई चेन पे डाल दिया. सो आई गेट मार्केटिंग के लिए ना छुपने के 10 जगह हैं. हम इतने लोगों को ब्लेम कर सकते हैं, ठीक है, बट क्योंकि खुद ओनर रह के आए हुए हैं, अपनी कंपनी चला के आए हुए हैं, तो पता ये होता था कि यार अगर मैं डाल भी दूं कल को सेल्स नहीं होंगी, इफ आई डोंट लाइक डू दैट तो नुकसान तो मेरा ही है ना. अब साल बाद हम भी तो चाहते हैं कि हमारी भी प्रमोशंस वगैरह हों, तो मुझे होता यही था कि यार अल्टीमेटली हमने सेल्स नंबर देखना. अगर सेल्स ठीक होंगी ना तो सप्लाई चेन वाले भी खुश होंगे, ठीक है, जो डाटा एंट्री वाला लड़का है वो भी खुश होगा, जो डिज़ाइन डिपार्टमेंट है, क्रिएटिव डिपार्टमेंट है, जो मार्केटिंग वाले हैं वो सब खुश होंगे. सो मुझे यही होता था कि यार इतनी चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं. सो आई एम लाइक कि डोंट गिव मी द एक्सक्यूज टू पुट इट ऑन दैट डिपार्टमेंट और दैट डिपार्टमेंट. एंड वहाँ पे वो चीज़ हो जाती थी कि सो आई वुड ब्रिंग एन आइडिया टू यू एंड यूड बी लाइक ओके ज़ियाद हेयर मी आउट, हेयर्स माई परस्पेक्टिव ऑन दैट. एंड आई एम लाइक okay everything you're saying is amazing, वाकई I didn't think about it, but then I go like कि यार जब मैंने लास्ट टाइम एड रन किए थे एक सांवली लड़की थी और एक गोरी लड़की थी. yes I remember. और गोरी लड़की के ऊपर ज्यादा सेल्स हुई थी. yes and I hate that. but if we don't get the sales we don't, जो हमारा अगली जो 3 लाख
प्रोडक्ट्स का बैच आ रहा है वो हमें गिव अवे करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो अब आई एम लाइक कि ओके लुक मैन वी आर ऑन द सेम टीम, सो आई एम लाइक कि ओके देन द CEO आप क्या करेंगे, लाइक व्हेन इफ द सेल्स डोंट कम इन, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ठीक है, बिकॉज इफ द सेल्स कम इन तो फिर क्रिएटिव को भी नहीं करने का, वो मार्केटिंग ने देखो कितनी सेल्स करा दी, ठीक है, अब वो तो मुझे पता हो गया ना कि यार वो तो उसने मुझे बचा लिया, ठीक है। सो वहाँ पे ये होता था कि यार अच्छा इट नीड्स टू बी जो आपकी अकाउंटेबिलिटी है ना उसकी लाइन बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि कोई ये ना कह सके कि यार तो फलाने ने ये किया फलाने ने किया। हम अपने CEOs पे भी डाल सकते हैं कि भाई आधा टाइम तो इंटरनेट नहीं चल रहा होता, आपने इंटरनेट सिर्फ एक लगाया हुआ, आप यहाँ पे 4 लगवाए ना कनेक्शंस, तो CEO का क्या काम है, वो 4 लगाएगा और कहेगा अब तुमने ये बहाना नहीं देना। एंड ज़ियाद आई थिंक वो वही उसी इंस्टेंस के अंदर आई थिंक आई आल्सो मे बी एट सम पॉइंट रियलाइज्ड कि पार्ट ऑफ माय जॉब वाज आल्सो लाइक सॉर्ट ऑफ सपोर्ट यू एज मार्केटिंग हेड ना, कि you were leading that front, because you were at the front of interacting with clients and जो सारा system जो run कर रहे हैं हम, we were doing digital marketing and also eventually retail, so I was maybe acting as your arms as well, and then some of the ideas that I might not agree with you but I still have to do it because you're looking at the करना पड़ जाता है, because you're looking at the front and you also want to try a few things, ठीक है, and then you know of course वही let's suppose वो लोगों की बात है, if you want to try different captions and different variations or different compositions, you again maybe you and I were not like a different entity but same team or same organism. So I think at some point when I realized that that also helped me, but in again वही अगर मैं इस तरह की एक चीज़ भी शेयर करूँ कि I also had respect for you because even if we had like heated arguments, but then I always knew that this guy is also coming from that point that he also wants to improve things. The reason if he's having a heated conversation with me because he's driven, he's passionate about doing the best. So that gave me the motive to have more respect for you कि अच्छा हाँ ठीक है, ये मतलब ठीक है, if मेरा शायद एजेंडा यहाँ पर ये नहीं as a creative director or as your team member to win this argument. It's okay to if I lose because at the end of this is also a team member, but this guy is again coming from that same sense which I have for maybe design or creativity or creative direction, but then if this guys also want to do it, let's support him in that sense. So I think that, and I'll give you an example from the same place जहाँ पे situation reverse हो जाती थी, ठीक है। So this interaction you did not get to see, which was जो मेरी आगे कस्टमर सपोर्ट टीम होती थी, बिकॉज दे वर फेसिंग द कस्टमर्स, मैं पीछे एक मार्केटिंग मैसेजिंग कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये है, ये हम ये क्लेम्स कर रहे हैं, और वो मेरे आगे कभी कभार हाथ जोड़ देते हैं, खुदा के लिए आप ये ना लिखें, उनको लगता है आप ये क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, एंड आई एम लाइक कि लेकिन वो इसकी वजह से तो सेल्स होती हैं, तो देर लाइक कि सेल्स होंगी, लेकिन सो समटाइम्स हमारी ऑडियंस जो है ना गलत भी समझती है। आपने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ऑर्गेनिक का वर्ड है, ठीक है, अब ऑर्गेनिक का अगर केमिस्ट्री में मीनिंग देखें तो उसका मतलब जिस चीज़ के अंदर कार्बन हो, लेकिन दुनिया क्या समझती है ऑर्गेनिक का मतलब कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है कि भाई वो नेचुरल है, उसमें कोई खाद नहीं इस्तेमाल हुई, उसमें कोई जो है ना सीड मॉडिफिकेशन नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुई। सो दे आर लाइक कि यार जब आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लिखते हैं तो लोग ये समझते हैं, सो लोग समझते हैं कि इसके अंदर कोई केमिकल है ही नहीं, जबकि वाटर इज ऑल्सो केमिकल, ठीक है, लेकिन पीपल डोंट नो दैट, राइट? सो अब आई एम फेसिंग दैट फ्रॉम द कस्टमर सपोर्ट कि दे आर लाइक यार हमारे वो फोन के ऊपर दे आर स्कोल्डिंग अस, ठीक है, सो दे वुड गेट दैट काइंड ऑफ like I had to face that from their side, where they would say कि आप ये मार्केट ना करें, आप ये अपनी कैप्शन चेंज करें, अभी चेंज करें, आपने ऐड लगाया हुआ है, वो ये है, हमें ये कंप्लेंट्स आ रही हैं, ये आ रहे हैं, वो आपको लग रहा है कि लोग ये समझ रहे हैं, लेकिन लोग असल में ये समझ रहे हैं। सो वहाँ पे आई यूज्ड टू बी दैट गाय हु वुड बी लाइक कि यार ओके फाइन, देन आई वुड हैव टू डू इट, राइट? और अगर मैं ना करता तो वो यही होना था कि लाइक द CEO वुड बी लाइक कि यार मैसेजिंग खराब है, वाई यू नॉट चेंजिंग इट, तुम क्यों लोगों को लेक्चर देने पे तुले हो कि नहीं इसका मतलब तो ये है, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, या फिर अलग कैंपेन चला लो अवेयरनेस की, ठीक है। सो दिस हैपेंस लाइक, सो देयर वाज दैट साइड एज वेल जहाँ पे आई वुड बी ऑन द रिसीविंग एंड फ्रॉम अ टीम दैट वाज रिपोर्टिंग टू मी, बट जो उनकी मैनेजर थी वो शी वुड टेक अ स्टैंड एंड शी वुड से कि ज़्याद हाउ कैन यू से दिस, मैं जो हमारी कस्टमर सपोर्ट वाली है ये डांट खाने के लिए तो नहीं बैठी हुई, बात तो ठीक है, ठीक है। सो फिर वो तो इस तरह का, तो फिर वही होता है कि देन व्हेन वी वर्क टुगेदर, फिर आहिस्ता आहिस्ता यू नो थिंग्स काइंड ऑफ कम टू दैट, बट वी हैड अ गुड टाइम देयर, वहाँ पे अल्टीमेटली वी हैड एक्सीलेंट ग्रोथ, ठीक है। ऑब्वियसली प्लेटो बीच में आते हैं, फिर आपको सर्टेन फर्दर इनोवेशन करना पड़ती है। आपके कुछ डिज़ाइंस थे, मुझे याद है एक मरतबा वी हैड अ फोटो शूट एंड यू
एक पोर्ट्रेट थी ऑफ अ मॉडल एंड आपने उसको सारे के सारे को ब्लू कर दिया था, ठीक है, एंड वो बेसिकली हमारी कैटेगरीज के साथ वो था, एंड आई स्टिल रिमेंबर एंड सीइंग दैट आई वाज लाइक आई कुड नॉट हैव थॉट ऑफ दैट, एंड मैं इतना चाहता था कि ये हम कहीं ना कहीं यूज करें, एंड द आइडिया वाज कि करना है, उसकी बस आई थिंक कभी बारी नहीं आई, बट ओवर देयर आई वाज लाइक कि ओके ये इस कैंपेन में नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके लिए कुछ बनाऊं, कोई आई थिंक ऑफ समथिंग कि मैंने कोई कैंपेन चलानी है और मैं उसमें ये क्रिएटिव्स यूज करूं, तो वो भी होता था, ठीक है, so yeah I guess yes definitely वो again as a team again अगर इस तरह की चीज़ें होती है तो अच्छी चीज़ें भी होती हैं, अगेन शायद हमें दोनों चीज़ें देखनी चाहिए हम सबको उस सेंस के अंदर. ओके ज़ियाद, आई एम स्ट्रगलिंग विद समथिंग दीज डेज एज वेल एज अगेन एमी एक मेरे दिल में बात है कि मैं ज़्यादा से रिफ्लेक्ट करता हूँ कि sometimes I do wonder, you know, when I'm building brands or, you know, I'm doing that creative direction वाला काम या strategy वाला काम, I still, you know, don't know कि how to, you know, convince those internal clients. ठीक है, because I absolutely understand कि again वही team work है, वही वो बात है कि it's part their work as well, whatever I'm doing, and it's a larger organization. But sometimes as a creative, I don't know, you know, how to make them see into this कि अच्छा अगर हमने ये चीज़ certain तरीके से करनी है, I'm not in the short term or mid term, I'm not able to reflect that in the ROI. But eventually is for the good, and if you let the creatives or the art director or the brand manager take that lead, it would be, you know, beneficial for that. So how do, you know, there any suggestion for me कि how do internal clients को कैसे manage किया जाए? So obviously situations different जगहों पे unique ही होंगी. My formula is के again this is one of the first things we learn in business school कि you always take stock of your environment, ठीक है कि ओके यहाँ पे मुझे ये अगर ये चैलेंजेस हैं, यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम इस तरह से हो रहा है, तो ऑन दी अदर हैंड देयर आर दीज एडवांटेजेस. ओके अब ये सिचुएशन है, यहाँ पे समवेयर इन देयर इज अ वे, ओके ठीक है. सो फलानी ऑर्गेनाइजेशन में द CEO अंडरस्टूड और मैं उससे ये बात करता था एंड वी यूज्ड टू बी इमीडिएटली ऑन द सेम वेवलेंथ. यहाँ पे वो तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे दे गिव इम्पोर्टेंस टू दिस थिंग. सो Ziad, I think this is a good opportunity for me to, you know, reflect this with an experienced person like you. As a creative director or, you know, someone who loves building brands, I still sometimes, you know, struggle with making internal clients realize कि अच्छा कुछ चीज़ें अगर short term में या mid term में impact नहीं कर रही in terms of design or in terms of any creative decisions, they would have impact or they would have, you know, that sort of ROI wali baat in the long term. And this is the time, this is the immediate thing. And then the other again इसी का subset ये है कि वो वहाँ पे कुछ for example not just me but अगर वो creative manager को या brand manager को या अपने art director को lead देनी है to, you know, sort of take that decision, so it would have, you know, benefits in the mid term and long term as well. So any, you know, sort of yeah. So when you when you're dealing with these internal clients, ठीक है, तो yes उनके माइंड में कुछ चीज़ें होती हैं और कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं जिसकी वजह से वो हो सकता है आपकी कई चीज़ों को ना उस तरह से देख रहे हो, उसको ना वो सपोर्ट करना चाहें. बट देन probably the best way to deal with that, जो मैं खुद भी encourage करता हूँ, जो जिनका मेरे साथ let's say conflict होता है कि they want to do something and I'm like ये अभी हम नहीं कर सकते, तो उसमें होता ये कि okay जिस तरह मार्केटिंग अगर हम बजट्स डिवाइड करते होते हैं, सही है कि this let's say 30% is going to customer acquisition, ठीक है, 30% is going to remarketing, ठीक है, and then 30% is going to the new line that we are going to launch, ठीक है. But then there's going to be that 10% where we are going to be like okay ये सिर्फ experiment है, इसके ऊपर हम ROI नहीं देखेंगे, ठीक है. So perhaps when you are pitching these ideas and especially जो वो होते हैं जिसके होते हैं कि यार over time ये चीज़ develop होगी, तो मुझे the way I deal with that as a manager वो यही होता है कि okay here's what we are going to do. हम जो अपना है let's say 70% efforts जो हैं वो हम अपने रखेंगे let's say जो short run और हमारी जो medium term है, ठीक है, जो हमारे immediate plans हैं. But let's say जो remaining 30% है वो हम
कंटिन्यू करेंगे एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इनटू आवर ब्रांड पोजिशनिंग, इनटू आवर मैसेजिंग, इनटू आवर ब्रांड इमेज, ठीक है. एंड वहाँ पे फिर वी आर नॉट गोइंग टू मिक्स दैट विद द ROI. सही, ठीक है, क्योंकि फिर हम जब ROI कैलकुलेट करेंगे तो हम ये नहीं वो जो 30% एक्सपेंस है उसको नहीं हम लोग फिर उसके अंदर कैलकुलेट करेंगे. एंड इफ यू कैन सॉर्ट ऑफ पिच दिस आइडिया टू देम लाइक दिस कि आई वांट टू डू दिस थिंग, आई अंडरस्टैंड कि आपकी अभी वक्ती तौर पे ये लिमिटेशंस एंड दिस इज व्हाट यू वांट, आई विल गिव यू व्हाट यू वांट, बट आई वांट के अगले 1 महीने के अंदर, 2 महीने में, 3 महीने में गिव मी सम, allocate me either some budget or some time or some any resource, whichever is relevant to your ideas, ठीक है, where you will allow me to experiment this, ताकि आपका काम भी चलता रहे एंड साथ हमारी ब्रांड जो है वो ये चीज़ें साथ एक्सपेरिमेंट भी करती है, या फिर जो हमारी लॉन्ग टर्म विजन है उस पर इन्वेस्टमेंट भी होती रहे. ठीक है, सो दैट कुड बी वन वे टू नेविगेट दिस. सही हो गया. अब उससे इन एन आइडियल सिनेरियो होना ये चाहिए कि when let's say after a month when you get that space to do your thing, when you start implementing that, अक्सर मैनेजमेंट को वो विजन समझ आना शुरू हो जाता है. वही वाली बात कि sometimes you can't tell, you have to show. So you're like यार give me the opportunity to show you a little bit. ठीक है, when that goes, अब आपको ये टेंशन नहीं है कि ये मुझसे ROI का पूछेंगे, आपको ये टेंशन नहीं है कि मुझसे ये कहेंगे कि यार उसका क्या बना. अगर चल गया तो वेल एंड गुड, ठीक है, तो फिर तो इनको भी समझ आ जाएगी, फिर हो सकता है ये अपनी सारी चीजें यहाँ पे शिफ्ट कर दें, ठीक है, या उस चीज को मेजर चंक दे दें और उसको अपनी मेन स्ट्रीम में ले जाएं. और अगर नहीं चला तो इवन देन I can claim कि hey, as the creative director, I've other than this stuff जो मेरा डेली का काम है, मैंने साथ ये एक्सपेरिमेंट्स भी रन किए हैं, मैंने फलानी चीज़ को टेस्ट भी किया है, उसकी वजह से हमारे पास ये इनसाइट्स भी आई हैं. अब जब आप ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे ना तो हर जो कॉर्पोरेट बॉस है ना वो उसकी वो कहेगा हाँ क्या बात है, ठीक है, क्योंकि वो ये चीज़ें समझते हैं. ठीक है कि यार क्रिएटिव मैनेजर है, ठीक है, मैं शायद लेट्स से मैं बहुत ही ज़्यादा नंबर्स वाला बंदा हूँ और ये क्रिएटिव बंदा है, लेकिन अगर ये क्रिएटिव बंदा मुझे इस तरह से समझाएगा ना कि हे इतने परसेंट शुड गो इनटू एक्सपेरिमेंटेशन विच इज़ गोइंग टू गिव अस दिस मच इनसाइट. Now you have given me something quantifiable. I don't need to be a creative person to understand कि मुझे value मिल रही है उसके अंदर से कुछ, मुझे knowledge मिल रहा है, मुझे insight मिल रही है. If you explain it to them like this, probably they will understand. Now I understand unique situations होंगी, but a version of this could work for like not just creatives, for anything. और मैं खुद करता हूँ ये, ठीक है. So कोई experiment होता है वो fail होता है, ठीक है, and I go like insight. And if they are the right people, so they understand कि okay, we discovered a way how not to do it. That's the worst case scenario. उससे मुझे भी हो जाता है कि यार ये they are not going to ask me about the success of this, क्योंकि मैंने भी इनसे let's say 10% सिर्फ resources लिए हैं या 5% लिए हैं, ठीक है, और ये उन्होंने खुद अप्रूव किए थे कि अच्छा यार इतना लॉस तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हो सकता है. और अगर इसके बाद आपको अगला प्रॉब्लम ये फेस होगा कि वो आपको प्रॉबेबली यही चीज़ें आपको दिए जा रहे होंगे कहीं और आपका वो टाइम ही नहीं आएगा. आप कहोगे कि यार इन्होंने मुझे कहा था कि आई कैन डू दैट थिंग, बट ये तो मेरे पे चीज़ें लादे जा रहे हैं, अब फलानी कैंपेन नहीं ऐसे ही करना है, तो वो कहाँ गया. सो दैट्स द टाइम वेयर यू वन ऑफ योर मीटिंग्स यू गो देयर एंड यू गो लाइक यस बाय द वे हमारे क्रिएटिव डिपार्टमेंट के अंदर जो ये वाली टीम है ये लैकिंग है. आई वॉन्ट यू टू पुट दैट इन टू द एजेंडा कि द नेक्स्ट स्टेप फॉर द क्रिएटिव डिपार्टमेंट इज टू have the resources जो कि while we are working on our creatives या while we are working on our campaigns जो आपको अभी running में required हैं, साइड पे ही experimentations भी हो रहे हों, because होगा क्या, साल गुजर जाएगा and we will have lost time और हमारा कंपेटिटर जो है ना वो हो सकता है कोई नई चीज इनोवेट करके निकाल के ले गया हो, क्योंकि उसने तो अपनी टीम पूरी बनाई हुई है या उसने तो अपने रिसोर्सेज पूरे किए हैं. सो व्हेन आई से रिसोर्सेज दैट कुड बी इन टर्म्स ऑफ मनी, इट कुड आल्सो बी इन टर्म्स ऑफ द टीम मेंबर्स, इट कुड बी इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है, एनीथिंग लाइक दैट. सो जब आप इस तरह से बात करेंगे ना तो नाउ यू आर स्पीकिंग देयर लैंग्वेज, मैनेजर्स की लैंग्वेज, ठीक है, तो फिर उनको कहेंगे हाँ अब ये बात ठीक कर रहा है, ठीक है, एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसे ही हो. नहीं, डेफिनेटली आई थिंक आई वुड गिव इट अ शॉट एंड आई वुड ट्राई इट. आई थिंक ये बिल्कुल इस चीज़ हो सकती है. ओके, सिंस वी आर सिटिंग एट टेक रिलेटेड वेंचर फ्यूचर फेस्ट, we do ask people about what they think about tech and how it's related to their practice. Is there anything that you are thinking these days about what's going around in the tech evolution and the new wave of tech? Yeah, so yeah,
the answer is not going to be very unique because everyone is thinking about AI. Okay. ठीक है. I would like to make one distinction. हम जिसको AI कह रहे हैं ये असल में AI है नहीं. ChatGPT is not really AI. ठीक है. It's a language model. ठीक है. AI for me is when a program has the ability to write its own code. Now it's evolving. Now that's free will, or that's that's artificial intelligence. Then that program is like, okay, I want to have the ability to do this, and it writes its own code, it modifies its own code, ठीक है, because we have given it the ability to do it and the permission to do it. ठीक है, हमने उसके parameters के अंदर वो डाला है. We are away from that. Well, there have been a few experiments इसके ऊपर थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन so I just want to get that out of the way, क्योंकि अक्सर लोग तो इसके ऊपर ही आ जाते हैं ना कि भाईजान जिस तरह हम नमाज के ऊपर डिसएग्री करते हैं ना कि नमाज ऐसे होती है ऐसे नहीं होती, तो AI पे भी होता है कि ये तो AI है ही नहीं. So जो अभी AI है जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, जिसके अंदर आपका ChatGPT ये सारा कुछ आ जाता है, so ये एडवांस्ड मशीन लर्निंग जो मॉडल्स हैं, ठीक है, इट इज़ स्टार्टिंग टू लाइक बहुत ज़्यादा लोग डिस्कस करना शुरू हो गए हैं, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस डेफिनेटली है, और शायद काफ़ी लोग इसको अंडरस्टैंड ना कर पाएँ कि कितनी जल्दी वो रिडंडेंट हो सकते हैं. हमारी अपनी फील्ड के अंदर देयर इज़ सो यू सी एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर यू नो कि यार यूनिक आइडियाज़ के लिए आई एम द गाय, राइट, बट देन देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क जो ग्राफिक डिजाइनर्स करते हैं. ऐसे ही है. ठीक है. बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन अ शेफ एंड अ कुक. ठीक है. एक शेफ जो है ना उसको रिप्लेस करना मुश्किल होता है, कुक को रिप्लेस करना आसान होता है. ठीक है. जो डिजाइनर्स हैं यहाँ पे दिस इज गेटिंग अ बिट ट्रिकी. सही. एंड वो लोग जो खास तौर पे सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हैं, जिनको पता है कि यार हम ये सर्विस ऑफर कर रहे हैं, उसके ये 8 तरह के हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं, उस तरह की हमने चीज़ें बना के देनी है. इट हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम सो सिस्टमेटिक कि आपको बीच में ज़रूरत कम हो जाए ऑफ क्रिएटिव. या फिर अगर पहले एक काम 8 डिज़ाइनर्स कर सकते थे, अब शायद वो 3 डिज़ाइनर्स यूजिंग AI with their just enough human input using those tools. I'll give you an example. When I joined Arvilon, मैं आया हुआ था एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हाउस से. ठीक है. अब Arvilon एक स्किन केयर कंपनी थी. उन्होंने अगर कोई बंदा लेट्स से वो यूनिलीवर से हायर कर लेते या कोई एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्किन केयर ब्रांड्स, अगर उनका वो मार्केटिंग का बंदा ले आते या उनका GM उठा के ले आते या उनका प्रेसिडेंट उठा के ले आते. ठीक है. सो उसने जिस तरह से मार्केट में हो रही चीज़ें उस तरह ही चलाते देना था, राइट. व्हेन आई गॉट इन, फॉर मी स्किन केयर वाज न्यू, बट देन आई वाज कमिंग फ्रॉम अनदर इंडस्ट्री एंड आई वाज ब्रिंगिंग अ होल न्यू सेट ऑफ द वे टू डू थिंग्स, राइट. डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट वहाँ पे होते थे जो कि भाई एक दिन में 100 ऑर्डर है, 200 ऑर्डर है, वो बैठ के जो है ना, जो हमारी ये कोरियर सर्विसेज है उनके पोर्टल पे जाके एक एक बंदे का नाम एंटर करना, उसका एड्रेस, वो पूरी फुल टाइम जॉब थी. और वो ऐसा था कि हम प्रोजेक्ट लेते हैं, हमें शायद 3-4 तो ये रखना पड़े. नाउ बिकॉज आई वॉज कमिंग फ्रॉम सॉफ्टवेयर हाउस, सो आई वॉज लाइक ये तो रोबोट्स का काम है. ठीक है. एंड आई रिमेंबर वहाँ पे बैठे बैठे लाइक इस तरह ही करते करते आई वाज लाइक यार ये बंदा सारा दिन खप जाता है, एक दिन छुट्टी करे तो हमारे ऑर्डर मैं डाटा एंट्री शुरू कर देता था अगर उसने छुट्टी कर ली. सो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने हल्का से रिसर्च किया. मैंने कहा यार ये कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली चलते हैं, आप उनको स्टेप 1 2 3 4 समझा देते हैं. दे इवेंचुअली लाइक आई लर्नड दे आर कॉल्ड RPAs. ठीक है. दे आर बेसिकली रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन. ठीक है. वो क्या करता था कि वो जाता था, वो मैंने उस तरह से बनवा लिया कि एक लेट्स से एक एक्सेल फाइल के अंदर सारे हमारे ऑर्डर्स की डिटेल्स होती थी, उनके नाम, एड्रेस, उसने ऑर्डर क्या किया है, प्राइस क्या होगी. दैट प्रोग्राम वी वुड जस्ट प्लेस दैट एक्सेल फाइल, बटन दबाया. और ये बाय द वे इंतहाई सिंपल है, जो लोग सुन रहे हो क्या वो अपनी आंखें रोल कर रहे होंगे जिनको समझ है. ठीक है. बट इन दिस इंडस्ट्री इट वाज न्यू बिकॉज सडनली आपके 4 डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट से इट वेंट डाउन टू 1 डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट जो कि जिसका काम था सिर्फ ओनली टू ऑब्जर्व करना, थोड़ी सी वो देखना कोई अगर मसला हो जाए. ठीक है. खैर वो फिर क्या हुआ कि वो सिर्फ प्रोग्राम जो है वो खुद हमने एक लैपटॉप के ऊपर इंस्टॉल कर दिया, और वो खुद जो है वो URL डालता था, वो खुलती थी, उसके अंदर वो पासवर्ड डाल के अपने पोर्टल में लॉगिन करता था. एक्सेल फाइल से बारी बारी वो जो 100 एंट्रीज थी वो 15 मिनट में कर देता था, जो कि हम लोग शायद एक बंदा पूरे दिन में करता था. ठीक है. और उसके अंदर फेल सेव्स भी थे, ये वो वगैरह सारा कुछ होता था. ठीक है. अब सडनली वी हैड द एबिलिटी टू स्केल लाइक एनीथिंग विदाउट हायरिंग मोर पीपल. Okay. Now,
कुछ लोग इसको भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझते हैं, ठीक है, बट सोचो ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है भी नहीं, और इसने डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट का क्या कर दिया। वो देखो 3 जॉब्स गई, जो कि पोटेंशियल जॉब्स हमने बंदे को हायर करना था, ठीक है, और वो जो एक लड़का रह भी गया उसको भी लाले पड़ गए। और इवेंचुअली मैंने उससे कहा कि तुम सीखो कि ये आरपीएस किस तरह बनाते हैं। वो भी फिर यूट्यूब पे गया, उस लड़के ने पूरा वो सीखा, एंड इन द एंड वो हायर हुआ था एज अ डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट, बट इन द एंड वो आरपीएस को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई भी कर लेता था। और जब हमारे पास और कोरियर कंपनी के आए तो मुझे दोबारा वो कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा कंपनी से, वही लड़का कहता मैं बना देता हूँ। सो वो डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट भी ग्रो किया, ठीक है। सो वो अक्सर कहते हैं ना, द पीपल यूजिंग एआई विल रिप्लेस यू, ठीक है। तो उसको जब समझ आ गई और उसने कहा कि यार आरपीए तो बहुत अच्छी चीज़ है, फिर इवेंचुअली क्या हुआ कि हम तो ये डिस्कस करना शुरू हो गया कि यार मैं सुबह आऊँ, मैं अपना कंप्यूटर ऑन करूँ, मैं बटन दबाऊँ, मेरे जो सारे रेलिवेंट, मेरा ईमेल खोल दे, मेरा जो है वो जो ऑर्डर्स का डाटाबेस है वो खोल दे, ठीक है, जो मेरा फेसबुक का वो है जो एड्स मैनेजर है वो खोल दे, ताकि मैं जब तक चाय शाय बना के आऊँ मेरा पीसी ऑन होके वो सब रेलिवेंट चीज़ें वहाँ पे खुली हों। ये भी तो रोबोटिक प्रोसेस है, राइट। सो अब इमेजिन करें जो जिसको अभी हम एआई कह रहे हैं वो इससे कई गुना ज़्यादा एडवांस्ड है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि मैंने अभी 6 घंटे में बैठ के एक ई बुक लिख ली थी। कैन यू इमेजिन, लोग गोस्ट राइटर्स हायर करते थे, ठीक है। येस, इट वॉजंट परफेक्ट, लेकिन अब क्या हो रहा है, मैंने एक्चुअली देखना शुरू कर दिया है कि जॉब पोस्ट आना शुरू हो गई हैं एआई प्रॉम्प्ट एक्सपर्ट। अब वो एक फील्ड बनती जा रही है, बिकॉज उनको पता है कि यार यही चैट जीपीटी हमें एक अमेजिंग चीज लिख के दे सकता है अगर हम प्रॉम्प्ट ठीक डालें, ठीक है। और प्रॉम्प्ट्स किस तरह की हैं, जब मैं वो ई बुक लिख रहा था तो मैं देख रहा था वो बहुत मंडेन लिख रहा था, जैसे एकेडमिक राइटिंग नहीं होती, तो मैंने उसको लिखा कि रीजनरेट इन द टोन ऑफ अ ब्रैश अमेरिकन। यार उसने क्या खूबसूरत आगे लिखा, उससे वो फौरन टेक्सन बन गया, ठीक है। और उसने इतने मजे की उसने इंटोनेशन की अंदर वो सारा कुछ। समटाइम्स आई गो लाइक आई नीड अ मैसेज बट आई नीड टू लाइवन इट अप, तो मैंने कहा ओके रीजनरेट इन द टोन ऑफ डेव शैपेल, ठीक है, जो कि कॉमेडियन है। और वो सडनली दैट सेम कॉन्टेक्ट जो एक बड़ा एक ऑफिशियल सा था, इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग, और उसमें बात ऑफिशियली हो रही है, स्टोरी टेलिंग आ गई, ठीक है। और वो नॉट जस्ट दैट, बीच में जोक भी आ गया, ये समथिंग क्लेवर, ठीक है, समथिंग क्लेवर दैट वाज पिच्ड इन, एंड सो यू सी नाउ दिस इज द, अब ये एक नई फील्ड बन गई है, एंड आई नो कि अब ये भी एक आर्ट होगी। और अगर मैं अभी रिकमेंड करूंगा ना किसी को जो कॉलेज में है लोग, एक ग्राफिक डिजाइनिंग सीखे फौरन से पहले, ओके, और प्रॉम्प्ट्स के एक्सपर्ट्स बन जाए, ठीक है। इफ दे वो चैट जीपीटी, डाली और एक दो और भी हैं लाइक दिस, एस्केप माय माइंड, लेकिन काफ़ी आगे में, अगर वो ये सीख जाएं कि मैंने इनसे मिड जर्नी उसके प्रॉम्प्ट्स के अगर वो एक्सपर्ट बन जाए, तो जब वो ग्रेजुएट करेंगे दे आर गोइंग टू बी इन डिमांड। उन्होंने सिर्फ जाना है एक लैपटॉप के साथ अपने इंटरव्यूअर के आगे, और वो उसको अगर ये कन्विंस कर दे कि एवरीथिंग दैट यू वांट मी टू डू, कैन यू गिव मी 15 मिनट्स, मैं आपको कुछ बना के देता हूँ, बिल्कुल सही, ठीक है। मैंने उस दिन आई थिंक जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो आई थिंक विद इन 4 आवर्स मैंने एक क्रोम की एक्सटेंशन बना ली। अब आई एम नॉट अ डेवलपर, अब मुझे पता है कि मैं कर सकता हूँ, अगर मैंने कभी उस साइड पे करना हुआ तो आई नो हाउ टू नाउ इम्प्रूव दैट। नाउ इमेजिन इफ आई गो, अगर एक नई सॉफ्टवेयर कंपनी हो और मैं उसको जाके बताऊँ कि वाई शुड यू हायर मी, मैं तो डेवलपर नहीं हूँ, बट आई बी लाइक आई अंडरस्टैंड टेक इनफ कि मैं इन लोगों को लीड कर सकता हूँ। मैं डेमोन्स्ट्रेट कैसे करूंगा, वहाँ पे बैठे बैठे उनको क्रोम की एक एक्सटेंशन बना के दे दूंगा। मैं कहूँगा देखो यार ये तो भी मैं कर सकता हूँ। नाउ डू यू सी कि आई कैन मैनेज सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बिकॉज आई हैव इनफ नॉलेज टू नो व्हाट इज पॉसिबल एंड व्हाट नॉट, एंड द रेस्ट ऑफ कोर्स आई कैन विद अ गुड रिलेशनशिप विद दीज गाइज आई कैन डू। सो ये अगर 2 चीज़ें कर लें, मुझे पता है जब मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी थी, इट गिव मी अ ह्यूज एज, ठीक है, और लाइक इतनी चीज़ें उसके साथ लिंक हुई थी। अब अगर आप एआई के प्रॉम्प्ट एक्सपर्ट बन जाए तो यू आर गोना बी गुड, राइट। फिर आपको अगर आप डिज़ाइनर, आपको उसकी टेंशन भी नहीं है, बिकॉज देन द सेम एआई इज गोइंग टू बिकम योर फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि हर बंदा उस तरह से यूज़ नहीं कर सकता एआई को जिस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। आई हैव फोटो एडिटर्स सिटिंग इन माई ऑफिस, और वो अगर ये देख रहे होंगे तो मैं उनको भी थोड़ा सा बता दूँ, मैं उनको हिंट करवाता रहता हूँ कि गाइस अच्छा अपना ये स्किल डेवलप करो, वो स्किल डेवलप करो। लेकिन वीडियो एडिटिंग के अंदर इतनी एआई का आ गया है, फोटो एडिटिंग इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर, ठीक है, द राइटिंग इज ऑन द वॉल, ठीक है। और अगर और कुछ नहीं तो शायद फोटो एडिटर्स वो तो नहीं होंगे, लेकिन जहाँ पे अगर 20 रिक्वायर्ड थे तो अब शायद 10 रिक्वायर्ड हो, ठीक है, या फिर वही जिनको एआई यूज़ करना आता हो वो। सो अभी फोटो एडिटर्स अगर हैं ठीक है, सो दे शुड गेट इनटू एआई राइट नाउ। उनको अभी से देख लेना चाहिए कि यार हाउ कैन वी do an even better job using AI and use that. Like for that they need to get out of this 9 to 5 mindset. ठीक है, अगर मैं उनकी जगह हूँ
9 घंटे मेरी नौकरी है, 3 घंटे मैं दफ्तर में एक्स्ट्रा लगाऊंगा जस्ट टू लर्न, क्योंकि वो मेरा फायदा है. आई विल चेक आउट. और बाद में मैंने ये किया हुआ है एट माई टाइम. मैं चेकआउट करता था, 2-2 घंटे 3-3 घंटे ऑफिस में बैठा रहता था, रिसर्चिंग डिफरेंट थिंग्स वो वगैरह, क्योंकि घर जाके फोकस नहीं होता था. ठीक है, तो इस तरह की चीजें होती हैं तो करो. एंड वही होता है फिर देन पीपल सी दैट एज वेल. ठीक है, एंड दैट्स हाउ यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर. बिल्कुल ठीक है. ठीक है. एंड while you were you were saying about this AI और वो किस तरीके से maybe हमें वो change करना चाहिए, and I think I'm seeing a lot of possibility in the sense कि देखें वही जिस तरह you talked about that guy who learned to do to make an RPA, the data entry guy. So I was thinking कि यार ये तो फिर possibilities बढ़ रही है ना of upskilling. Yeah. कि अब डाटा एंट्री का स्किल जो है इट इज लाइक द बॉटम टियर. बिल्कुल सही है. अब हर डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट जो है आई नो कैन लर्न कि रोबोट्स किस तरह बनाते हैं, रोबोटिक प्रोसेसेस किस तरह बनाते हैं. इट्स जिस तरह एक फोटोशॉप एक टूल है ना, उसी तरह इसका भी एक टूल है. एंड यू डोंट नीड टू बी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर टू डू दैट. बट क्यों नहीं कर रहे? करें. लाइक व्हाट्स स्टॉपिंग देम? इट्स जस्ट दैट दे हैव गॉट दिस थिंग इन देयर माइंड कि बस वो 9 to 5 करनी है. और क्या ऐसा भी हो सकता है ज़ियाद कि वही के अगेन अभी तक इस एरा तक वही चीज़ थी ना कि टू एक्वायर अ स्किल वी वुड स्पेंड 3, 4, 5, 7 years in getting the basic understanding and becoming adept in it and then eventually becoming advanced in it. ठीक हो गया. But then यही जिस तरह AI tool के अंदर you made a Chrome extension like this. ठीक है. So maybe जहाँ पर वो अगर आपके लिए कुछ आपके अपने काम में वो आपको थोड़ा सा आपको थ्रेटन महसूस कर रहे हैं, बट देन देयर आर अदर 50 and 100 or 1000 अपॉर्चुनिटीज व्हिच आर ओपन. फॉर एग्जांपल कि वही जिस तरह आपके उस लड़के ने वो RPA बनाना सीख लिया, अब वो वही और भी जो चीज़ें और जो काम आएंगे और कोई टास्क होंगे, कोई मैनेजमेंट से रिलेटेड, कोई सेल्स से रिलेटेड, तो देन ही कैन लर्न फास्टर एंड और ये तो हो गया ना, ये तो मैंने बात की है जो बेचारे सैलरीड लोग हैं. सही है. नाउ इमेजिन आप एक कंपनी के ओनर हैं और लेट्स सी यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू AI. और लेट्स से आपका एम्प्लॉय कर रहा है, आपने एक डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट रख लिया, आपने अगर वो अक्लमंद आपसे ज़्यादा हुआ, वो चुप करके एक RPA बनाएगा, सारा दिन दफ्तर में यशी करेगा, एक्टिंग करेगा कि मैं काम कर रहा हूँ, RPA से सारे काम करवाएगा और आप उसकी तनख्वाह भी भरेंगे, आप उसको हर साल इंक्रीमेंट भी देंगे. वाई? बिकॉज एज अ बिजनेस ओनर यू आर नॉट विलिंग टू लर्न. और मैंने भी बहुत देखा है लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, दे स्टॉप लर्निंग. अगेन मेरे जो नेक्स्ट ब्रिज के CEO थे, ठीक है, मार्क मिया, ही यूज्ड टू से कि मैं रोज़ ये सोचता हूँ कि मैंने अपने आप को सराउंड करना है बाय द पीपल हु आर स्मार्टर देन मी. ठीक है, वो कहते हैं मैं रोज़ अपने आप को अपनी शक्ल शीशे में देखता हूँ और मैं अपने आप को कहता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुमने आज सीखना है. एंड दैट गाय इज़ द ओनर ऑफ अ $multi-million कंपनी. ठीक है, एंड इज लिविंग इन आई डोंट नो आजकल कहाँ रह रहे हैं वो, लाइक टेक्सास और वेयर एवर. ठीक है, तो ही डजंट नीड टू हैव दैट माइंड सेट. ठीक है, लाइक हम इतना नहीं करते, तो वो एक बंदा उसने इतनी बड़ी कंपनी बना ली. ठीक है, नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग, बट ही इज़ लाइक आई एम गोइंग टू लर्न समथिंग टुडे. ठीक है, तो अब अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो आपको थूक लगाना बहुत आसान है अगर आप लर्निंग नहीं कर रहे. और लड़के इतने तेज़ हैं. ठीक है, अब देखो ना, मैं जब ये RPAs का लेके आया, ठीक है, तो मैं भी तो ये करवा सकता था ना अगर मैं चाहता तो. ठीक है, तो या फिर अगर मैं ना ये लर्निंग कर रहा होता तो जो मैंने आगे 4 लड़के रखने थे उसमें से अगर कोई एक अकलमंद होता वो चुप करके सारा दिन एक्टिंग करता काम करने की और पीछे से रोबोट लगाया होता काम करने के लिए. तो ये उसकी एक फ्लिप साइड है कि जो कहते हैं ना कि वो लोग जो हैं वो हो जाएंगे, उनका काम उतना नहीं रहेगा. तो जो बिजनेस ओनर्स हैं उनको तो और भी ज़्यादा परेशान होना चाहिए कि AI से क्या बन रहा है, अच्छा और क्या नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं. क्योंकि अगर आप नहीं सीखेंगे, आपके एम्प्लॉय ने सीख लिया एंड देन दे स्टार्ट ऑटोमेटिंग देयर जॉब्स विदाउट योर नॉलेज, वो बेनिफिट तो आपके पास आना चाहिए था. ठीक है, और अब आपने जो है ना एक कॉस्ट इंकर किए जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं है कि वो तो सारा दिन ऐसे ही करता है. कई लोगों के इस तरह के जैक लगे हुए हैं. एक गेस्ट आए थे हमारे इसी पॉडकास्ट के अंदर, ही टोल्ड मी अबाउट दिस केस स्टडी कि किसी एजेंसी से थे वो, उन्होंने बताया कि वो उस एजेंसी के जो हेड थे तो दे वर नॉट फाइंडिंग द एग्जीक्यूटिव क्रिएटिव डायरेक्टर. ठीक है, जो काफ़ी सीनियर पोजीशन होती है और वो बहुत सारे वो काम करते हैं. बट सिंस दैट बिजनेस ओनर ही इज़ बीन रनिंग दैट कंपनी फॉर मोर देन डेकेड्स, और सालों का एक्सपीरियंस था, सो ही न्यू दैट प्रोसेस. सो ही सेड दैट business, that CEO, he now works as an executive creative director with the help of ChatGPT and AI. Yeah. Because अब वो वही जो उनकी जो एक
एक जो लर्निंग जर्नी थी वो भी शॉर्टन हो गई ना. ऐसे तो आई गेस कि वही शायद ये अगेन द पॉसिबिलिटीज इज दैट कि अगर आपकी कोई जॉब या आपकी कोई स्किल है वो अगर आपको लगता है कि थ्रेटन है, बट देन अगेन वो बाकी भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आप देख सकते हैं, आप कर सकते हैं. अगेन फॉर एग्जांपल अगर मैं एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर और एज अ ब्रांड पर्सन अगर मेरी चीज़ें चैट जीपीटी कर सकता है, बट देन आई एम ऑल्सो राइटिंग बिजनेस प्लान्स, आई एम ऑल्सो राइटिंग अ बुक विद AI. So then possibility of those barriers they are not there anymore. वो एक फ्लूइड हो गया सबके लिए लर्निंग. एग्जैक्टली लाइक आई बिल्ट एन HR डिपार्टमेंट. तो ठीक है, शुरू में वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो भी करेंगे, उनको मैं ट्रेन भी करूँगा, ठीक है, कुछ उनके तरफ खुद होना चाहिए. तो रिमेंबर मैंने लाइक आप एक सिंपल सा टास्क दे सकते हैं कि यार ये जो एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये सारे के सारे रीडू करने हैं, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है एम्प्लॉयज़ की, ठीक है. अगर लेट से हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ते गुजर गए एंड दे से दैट वी आर वर्किंग ऑन इट, तो मैं लिटरली उनको अपने आगे बैठाऊंगा एंड यूजिंग चैट GPT मैं उनको विद इन हाफ एन आवर वो सारे डॉक्यूमेंट जनरेट कर दूंगा. एंड आई नो कि वो 80% परफेक्ट होंगे. अब अगर 80% वो हो गए हैं तो सिर्फ 20% रह गया है. ये गिन के कोई 2-3 घंटे का काम है. अब एज अ जनरल मैनेजर आई हैव टू बी शार्प इनफ, ठीक है, एज अ सीनियर मैनेजर, एनी काइंड ऑफ सीनियर मैनेजर, वरना ये तो सारे मुझे थूक लगाई जाए. एंड उनको भी ये थ्रेट होना चाहिए कि यार अगर हमारे बॉस ने हमारे सामने बैठ के हमें ये काम करके दिखा दिया जो हमारी नौकरी है, सही है, तो ये हमें क्यों रखेगा. ऐसे ठीक है. सो दिस काइंड ऑफ ये जो चीज़ है ना, द वर्ल्ड इज गेटिंग वेरी फास्ट एंड लाइक ये सारे टूल्स आ रहे हैं दैट आर एट योर फिंगर टिप्स, राइट. आपने देखा जब ई-कॉमर्स आया तो अब लोगों को ब्रिक एंड मॉर्टर की ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है. तो अब AI आ रहा है तो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, बट इससे डरने के बजाय एम्ब्रेस इट, बी द लीडर. आप थोड़ी सी एफर्ट कर लेना. सही. इतने कितने लोग हैं जो प्रॉम्प्ट्स के ऊपर अभी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. मेजॉरिटी लोग नहीं कर रहे, 90% नहीं कर रहे हैं. आप थोड़ा सा कर लेना उसके ऊपर कि यार एक प्रॉम्प्ट्स लिखते किस तरह, मिड जर्नी की प्रॉम्प्ट्स के यार ये जो इमेज है मैं डाल रहा हूँ ठीक है हो रहा है लेकिन इट्स नॉट एग्जैक्टली व्हाट आई वांट. यू स्टार्ट डूइंग द रिसर्च, यूट्यूब पे देखेंगे किस तरह से हाउ डू आई गेट कि यार इस तरह का आर्ट वर्क निकले. नाउ यू स्टार्ट बिकमिंग कि यार मैं जब ये प्रॉम्प्ट्स डालता हूँ, इस तरह की इंस्ट्रक्शंस डालता हूँ, तो नाउ आई एम स्टार्टिंग टू गेट क्लोजर एंड क्लोजर टू व्हाट आई वांट, व्हिच मीन्स कि नाउ इफ समबडी नीड्स दिस सर्विस, उनसे नहीं हो रहा तो वो डेफिनेटली ढूंढेंगे. या मैं उनके पास जाऊँगा और मैं उनसे कहूँगा हे आई प्रिपेयर्ड दिस थिंग फॉर यू इमीडिएटली. व्हेन यू applied at Arvelon, so Umar sent me your portfolio, right? You basically demonstrated what you can do. Now imagine if you had mid-journey उस वक्त, और let's say अगर आपके पास portfolio ना भी होता, ठीक है, तो आप इतनी जल्दी, and you didn't have to hide it. You could have been like कि this is my ability, अब मैं mid-journey use करूँ या जो भी करूँ, but I can, मैं 15 मिनट में आपको ये काम करके दे सकता हूँ, ठीक है. So it's basically the next stage of that. बिल्कुल सही है, ठीक है. तो yeah, right now अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर या कोई फैशन डिज़ाइनर अगर पोर्टफोलियो के बगैर अप्लाई कर रहा है तो आई एम सॉरी यार, आपका तो 1-2 दिन के अंदर पोर्टफोलियो तैयार हो सकता है आपके कॉन्सेप्ट्स वगैरह, बिकॉज यूज दोज टूल्स एंड डोंट हाइड इट, क्लेम इट कि दिस इज माई वे ऑफ वर्किंग, दिस इज माई वर्क फ्लो. ठीक है. सो द सूनर पीपल अंडरस्टैंड दिस, यू नो, द बेटर इट विल बी फॉर देम. ओके, डेफिनेटली. Ziad, amazing catching up with you. I too, man. काफी बोलता हूँ. You're a good host. You don't interrupt. Thank you. I want to compliment you on that. And अक्सर बोलते बोलते मुझे यही होता था बीच में कि मैं ज़्यादा बोल गया हूँ. But thanks for getting, you know, allowing me to get my point across. No, thank you. I think you were here. And you know, it was an opportunity to pick your brain, so that makes sense. The guest speaks more. Thank you so much, Ziad.